softwares which have built on artificial intelligence, which will extract the required information you require, process it, and show the result to you. So artificial intelligence has again changed it. The biggest example of this is social media. For example, if in social media you click any link of a South Hindi movie, साउथ मूवी, सो फेसबुक अगले दिन से आपको वही मूवीज के, साउथ इंडियन मूवी के लिंक्स देखना, भेजना चालू कर देगा, राइट? सो की इन्वेंशन हुई. व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग? सो नाउ the biggest problem is of trust and transparency. Today, as a people, as a citizens, we do not have trust. We do not have trust in governments. We do not have trust in central banks. We do not have trust in any central authority. आशीष, नवीन सर, can you actually mute कर सकते हैं एक बार सबको? थोड़ा सा disturbance आ रहा था बीच में. हाँ, मैं कर रहा हूँ सर. हाँ, sure, thank you. Sir, so now the biggest problem is trust and transparency. आज आपको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत सी उनकी पॉलिसीज पे ट्रस्ट नहीं है. पीपल अक्रॉस द ग्लोब, they have a least of trust in their governments, they have least of trust in their central banks, they have least of trust in credit rating agencies. ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं. सो आप ये चीज समझिए, आज के वातावरण में आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो इफ यू हैव सीन इट, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन काइंड के लिए. सो इफ ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो दैट एक्चुअली गेट सॉल्व्ड बाय द ब्लॉकचेन. सो आप ये चीज ध्यान रखिए कि जब आपको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, इंटरनेट आया, और इंटरनेट ने आज आपकी पूरी लाइफ को टेक ओवर कर लिया है, तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. और जब इसका सॉल्यूशन ब्लॉकचेन रियल लाइफ में बहुत जगह इंप्लीमेंट होगा तो हाउ इट विल टेक यू. सो लेट मी टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ द ब्लॉकचेन. हम एकदम इजी वे में सबसे पहले समझेंगे कि ब्लॉकचेन इज दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट. इन द सिंपलेस्ट टर्म, ब्लॉकचेन क्या है? इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, राइट? सो कुछ एक ब्लॉक्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं एक चेन में. इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लॉकचेन इसके स्ट्रक्चर की वजह से पड़ा. इस टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक दैट, इट विल बी हैविंग द ब्लॉक्स and all these blocks will be connected via a chain. So that's why it's called as a blockchain. So what these blocks contain? So these blocks contain some information. आप कोई भी इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं या जिसको आप देखना चाहते हैं कि दैट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन शुड गो वाया ब्लॉकचेन, वो सारा इंफॉर्मेशन आप इस ब्लॉक के अंदर डालते हैं. अब जब मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद क्या, वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है which we say as a cryptography also for security, like हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर. सो व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? योर सिग्नेचर हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय a cryptography. So it's a computer program, just understand like this, it's a computer program which will save your information which you are putting in this block. So a blockchain is a chain of blocks where each block is containing some information that is being secured through cryptography, and once it is secured, a cryptographic security will generate one hash. So what is hash? Hash is just a name, like my Tarun Modi, Neil Yadav sir, Kuldeep sir. So how there are so many faces, how do we know each other? With a name. So now there will be so many blocks. So how these blocks will be known each other? So with this hash, so a block will contain information secured and a hash is there. Now this is the blockchain. लेकिन ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को कैसे रिजॉल्व करते हैं? So ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को रिजॉल्व करने के लिए what this techniques have is, sir, you have this information. आज आप समझिए एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन है, like how much gold reserve is there with the RBI. So that is on the central servers of RBI. Nobody else will know that how many actually gold reserves are there in India until when the reserve banks come out with some figures. So that is a central repository. But let us say if RBI also stores every information of purchase, sale of its gold on a blockchain, and that blockchain is distributed on every computer, on your computer or on my computer, we can easily go and check that information. So if I can easily go and check that information, if I found that 100 kgs are gold out there, obviously my trust will increase in RBI, that RBI is saying is 100 kg gold, and I can also check it, there is 100 kg gold.
So my trust will increase in RBI, and RBI will become more transparent to me. So that will be a miracle when we, because more of time we do not know इस सरकार ने ये चीज करी है, सेंट्रल बैंक ने ये चीज करी, but they are not transparent, सच कुछ और ही है. So now there are various things between us. So this is how blockchain actually solves that problem. Just keep that structure in mind. I will refine this structure a bit more to give you a in-depth understanding about a blockchain. So हमने ये समझा block. Now let us understand. एक कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं सर माइंड में, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चीज है, अपन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं. लेट अस कॉन्सेप्चुअलाइज इट कि हाँ ठीक है, ये ब्लॉकचेन क्या दिखता है, कैसा होता है. अपन ने ब्लॉक का बात करा, ब्लॉकचेन का मेन कंपोनेंट ब्लॉक. तो ब्लॉक है, ब्लॉक में क्या क्या होता है. ठीक है सर, एक चीज हमने सीखी सर, ब्लॉक के अंदर होता है डेटा. डेटा कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो हम जाके ब्लॉक में सेव कर सकते हैं. लाइक माय नेम इज तरुण मोदी, और तरुण मोदी ने कुलदीप जी को 10 रुपए दिए. व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू सेव इट, यू जस्ट सेव द इंफॉर्मेशन इन दिस. सेकंड, डेटा चला गया, क्रिप्टोग्राफिकली वो सिक्योर्ड हुआ, एक हैश उसे मिल गया. एक हैश उसे मिल गया कि माय नेम इज तरुण मोदी, दैट्स इंफॉर्मेशन. हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर. हेलो हेलो नवीन जी, am I audible? Yes, you Hello? are audible sir. Yes, Yes, audible Navin. sir. Yes, audible sir, audible. Okay. Clear आवाज है मे बी sir. सर जो मे बी सर जो है उनमें वहां पे नेटवर्क इशू होगा, सो थोड़ा सा, तो मे बी इफ दे कैन रिकनेक्ट दे विल बी एबल टू हियर इट क्लियरली. ठीक है सर, तो आगे चलते हैं. सो डेटा, द ब्लॉक विल कंटेन द डेटा. दैट डेटा विल बी क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड वाया एन हैश. सो अ ब्लॉक इज कंटेनिंग अ डेटा हैश. And one more important thing, see, this is the thing friends, which is actually making a blockchain different from data management systems. Blockchain data or hash, a blockchain will also contain the hash of a previous block. For example, there is a line 1 2 3 4. So the block number 3 will contain its own data, its own hash, and it will also contain the hash of block number 2, ताकि वो किसी को भी बोल सके साहब मैं 3 नंबर हूँ, मेरे देखो मेरे पास जो हैश है प्रीवियस ब्लॉक का वो हैश है ब्लॉक नंबर 2 का, तो वो अगर 2 है तो मैं 3 हूँ. तो इस हिसाब से वो लाइन में आगे जुड़े हुए हैं और एक ही चेन में आगे बनते जा रहे हैं. So the hash of a previous block is an important invention to bring all the blocks in one chain as well as the security of a blockchain. In the later slides, I will tell you how this hash of a previous block is the most important function in a blockchain. So now we understand what the block is. चलिए हमने थोड़ा सा conceptualize करा कि block क्या है, data है, hash है, previous hash है. अब एक blockchain को हम थोड़ा conceptualize करते हैं कि कैसी दिखती होगी. So let us say मैंने एक chain बना ली यहाँ पे blockchain. I have 4 blocks. तो मैं नंबर दे दिए 1 2 3 4. Now I am having 4 blocks. Now मैंने इनमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी. इंफॉर्मेशन स्टोर करते ही क्रिप्टोग्राफी ने इस ब्लॉक को इसका एक हैश दे दिया और इसके प्रीवियस जो ब्लॉक था उसका हैश दे दिया. क्योंकि ये ब्लॉक सबसे पहला है, इस ब्लॉक के पहले कोई दूसरा ब्लॉक नहीं है, इसलिए इसका प्रीवियस हैश 0000 आ रहा है बाय डिफॉल्ट. नाउ सी एट द ब्लॉक नंबर 2, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ सेव हुई है उस ब्लॉक का हैश यहाँ पे है, प्लस इट विल आल्सो कंटेन द हैश ऑफ previous block A1 B2 ये देखिए. So when it goes to 3, it will contain the hash of its own as well as hash of the previous block. Similarly to the 4. So this is how all the blocks are joined with each other in a chain with this hash function, and this whole known as blockchain. So as this is the first block, we always call it as a genesis block for understanding. So genesis block will always has a previous hash as 00, and you can have a new hash whenever the information is saved. So friends, this is blockchain. Conceptualize this. Okay, blocks are there connecting in a chain containing some data. That data is secured by cryptography, and that cryptography actually generates one hash for each block, and each block contains a hash for the previous block. So this is how blockchain works. बस डेटा सर इसमें जुड़ता जाएगा, ब्लॉक्स बनते जाएंगे, ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन आती जाएगी और वो चीज होती जाएगी. नाउ अन इम्पोर्टेंट थिंग सर, ठीक है सर, ये चलिए चीज कर ली, ब्लॉकचेन कर लिया, अब इसमें क्या बड़ी बात हो गई. मान लीजिए इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग कैन बी हैक, तो इसे भी हैक कर सकते हैं. मैं कहूँगा हाँ सर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, है तो एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर ही. लेकिन सर इसको हैक करना इतना आसान नहीं है.
इसके लिए जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है विल कम इनटू दैट. आप बस जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज अभी आपको दिमाग में रखने के लिए, इट्स अ ब्लॉकचेन हैश एंड द प्रीवियस हैश, ये आप दिमाग में रखिए. हाउ द सिक्योरिटी इज प्राइम इंपॉर्टेंस इन ब्लॉकचेन, आई विल टेल यू इन समथिंग. सो विल गो फॉरवर्ड. द सॉल्यूशन, सर ठीक है ये सब चीज आ गई समझ में, ब्लॉकचेन है, सारी चीजें हैं. आज क्या चीज है, आज हमारे पास अभी क्या ऑप्शंस थे सर? एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है, हम कंपनीज की भी ऑडिट करते हैं. द कंपनीज हैव सेवरल ब्रांचेस, हैव सेवरल अदर एसोसिएट्स, सब्सिडरीज. तो लेट अस से एक कंपनी, उनका हेड ऑफिस है मुंबई, तो मुंबई से सारी चीजें ड्राइव होती है, मुंबई से सारी. अब चेन्नई ब्रांच को जयपुर ब्रांच से कनेक्ट करना है तो चेन्नई मुंबई से कनेक्ट करेगी, मुंबई फिर जयपुर से, जयपुर फिर मुंबई से, और मुंबई से फिर चेन्नई इंफॉर्मेशन जाएगी. सो ये जहां तक वहां, ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क वहां होता है जहां पीपल डू नॉट वांट टू डिसॉल्व पावर एट द लोअर एंड. सेकंड इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, कि ठीक है सर हमने रीजन बना दी, region, APAC region, Africa region, Europe and Middle East, EMEA, USA region. तो वहां पे रीजनल हेड्स हैं, वो अपने रीजन को टेक ओवर कर रहे हैं, और जो भी लेट्स से एक हेड ऑफिस है लंदन, वो सब रीजनल्स को टेक ओवर कर रहे हैं. सो दीज आर द टू थिंग्स which we are familiar of. We know centralized networks are there. We also know decentralized networks. So what blockchain is offering me? The solution. What the solution blockchain is offering? So the solution is like this, sir. Everybody is connected with everyone. If a person want to connect to a New York branch situating based out on a Chennai branch, he can directly connect with the data and take all the information what he requires. He do not want to go either through a central region or to a regional region, whatever it is. Here you see, if you see, every node is connected with each other. Every node is connected with each other. So this is the blockchain, sir. Blockchain क्या है? अब आपने जो blockchain बनाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो बनने के बाद आपने उस ब्लॉकचेन को एक, इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट्स ऑन इंटरनेट. हर एक चेन्नई ब्रांच है या न्यूयॉर्क ब्रांच है या लंदन ब्रांच है, एवरीबडी विल बी डाउनलोडिंग दैट ऑल द डेटा, जो भी उन ब्लॉक्स में सेव हो रहे हैं, वो डेटा रेगुलरली हर ब्रांच अपने अपने सिस्टम्स में स्टोर करती जाएगी. सो in the real time, Chennai branch will also know what is the sale of the London branch. London branch will also know what is the sale of the Chennai branch. There is no point of connecting with each other or to ask with each other. You will know what the enterprise will know कि कौन सी branch के पास ज़्यादा stock पड़ा है, कौन सी branch के पास कब है, कहाँ से मैं transfer कर सकता हूँ, all in the real time. Because everybody knows everything. There is no need to connect with the central server. So this is the solution which blockchain is providing you. The only thing is all data, all the blockchain, you need to be regularly downloading it on your computer or on your system, information system or database system. So this is what in a blockchain is. Blockchain, every node should be connected with each other. Sir, वो centralized या decentralized किसी भी type में रखेंगे, blockchain हो सकती है, centralized, decentralized form maybe, but again that is of no use. And much of a use for an enterprise. We'll discuss it how. So this is what every node is independent and interconnected in a blockchain and important. Now sir, हमने ये चीज समझी. अब जो चीज हमने समझी उसको थोड़ा सा अपने हाथों से एक बार लिख के देख लेते. क्या है कि सर ब्लॉकचेन जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पब्लिक लेजर, जिसमें हम इसको बोल सकते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर है, शेयर पब्लिक लेजर टेक्नोलॉजी है, जो ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सर. आज हम लोग शादी करते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं. कोई भी सर अच्छा आप इनसे शादीशुदा है, मिस्टर ए शादीशुदा विद मिसेस बी. ओके तो सर ये मैं वॉइस इज नॉट ऑडिबल. मेरी वाइफ है, लीगल वाइफ है. हेलो नवीन सर. मेरे को ऑडिबल है सर, 100% ऑडिबल है. टू एनीवन एल्स इज इट अ प्रॉब्लम? No. No problem at all. Okay. No problem at all. Okay, maybe sir, maybe the personal, मैं केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पर्सनल कनेक्शन है जूम का, यू मे चेक इट ओवर दैट, या फिर आप थोड़ा सा जहाँ नेटवर्क आ रहा है उस जगह पे आ जाएं तो शायद आवाज थोड़ा बेहतर आएगी. ओके सर, तो आगे चलते हैं. मैं बोल रहा था कि फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव ए मैरिज सर्टिफिकेट. ठीक है सर, मेरी शादी इसके साथ हुई है, दिस इज अ प्रूफ. अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो दिस इज अ प्रूफ. पहले क्या होता था in our just two ages before, जब हमारे पिताजी थे, दादाजी थे सर,
शादी होती थी, पूरा गांव आता था, पूरा गांव झूमता था, सब देखते थे सब। तो वो क्या होता था सर, एक ठप्पा होता था कि शर्मा जी की बेटे की शादी हुई, हाँ सब हुई, हम तो फलाने टाइम पे खाने खाने गए थे और उसी लड़के के साथ हुई। तो जब गांव के 100 लोग एक साथ कहते हैं तो अपने आप ट्रस्ट और ठप्पा लग जाता है कि हाँ साहब शर्मा जी की बेटे की शादी हुई। सो यही टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन वालों ने यूज करी है कि सब जब 100 आदमी अगर एक ही चीज कहेंगे तो ट्रस्ट अपने आप बढ़ेगा। और वो 100 आदमी लेजिटिमेट तरीके से बोलेंगे। 100 में से आप 50 को झूठ बुला रहे हो, 60 को, बट 100 के 100 एक साथ झूठ बोल सकते हैं? नहीं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट क्रीड के। सो दिस इज व्हाट, ये जो एलिमेंट है ये यूज किया गया है ट्रस्ट के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। सो ब्लॉकचेन का ट्रस्ट तभी बढ़ेगा व्हेन इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर। आप सिर्फ अपने कंप्यूटर में ब्लॉकचेन बना के रख लेंगे तो इट इज नॉट मच यूज, इट्स जस्ट लाइक अ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम दैट। So it's a distributed public shared ledger that permits transactions to be recorded and collected into the blocks. किसी भी पर्पस ब्लॉक्स के अंदर वो डेटा को आप रिकॉर्ड कीजिए और उनको ब्लॉक्स में डालिए, जो कि जितना भी इंफॉर्मेशन दैट विल बी एक ब्लॉक को चेन में डालता जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लाइक 1 2 3 4 ऐसे ब्लॉक नंबर आते जाएंगे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालता जाएगा एंड allows the resulting information to be accessed by the different server. सर मैंने कोई भी नई इंफॉर्मेशन करी, लेट अस से वो केवल सेंट्रल लेवल तक ही सेव्ड है, वो आगे नहीं जा, तो फिर अगेन द पर्पस ऑफ द ब्लॉकचेन इज डिफीटेड। सर ये पब्लिक शेयर्ड लेजर है, यहाँ पे जितने भी नए ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो भी क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड होंगे और जो भी नया ब्लॉक्स जुड़ रहा है उसका एक्सेस सबको मिलेगा। दिस इज व्हाट द ब्लॉकचेन इज। सो अब हम प्रारूप एक चीज समझ गए कि ठीक है ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स जुड़ रहे हैं सर, इट इज अवेलेबल इन द इंटरनेट, एवरीबडी इज डाउनलोडिंग द इंफॉर्मेशन, और अगर मुझे उसी इंफॉर्मेशन के लिए किसी से भी पूछना है तो शायद 100 जने खड़े हैं बताने के लिए कि यस यू आर राइट। एंड जब 100 जने खड़े हैं बताने के लिए कि यस यू आर राइट, माई ट्रस्ट विल इंक्रीज एंड आई विल फील दैट ट्रांजेक्शन इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अ ब्लॉकचेन। अब सर मैंने आपको कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर लेजर सारी चीजें, बट देखिए ऑर्गेनाइजेशंस एट द एंड ऑफ द डे दे वांट कि सर हमको ब्लॉकचेन का तो बेनिफिट लेना है क्योंकि ब्लॉकचेन सिक्योर्ड है, इम्यूटेबल है, हमको उसका बेनिफिट तो लेना है, लेकिन हम हमारा डेटा पब्लिक के साथ क्यों शेयर करें? So they can go for their organizational blockchain also, which we call it is a private blockchain. So समझिए broadly there are two types of a blockchain. एक private blockchain में क्या होगा कि सर आपका institution का डेटा है, like ICICI बैंक बोले सर मुझे मेरी सारी ब्रांचेस को इंटरकनेक्टेड रखना है एक ही जगह, तो okay you and I want to use blockchain for you and keep it with your organization itself. So that is a private blockchain. Another example of a public blockchain आपने सुना होगा Bitcoin. So Bitcoin is an example of a public blockchain which is available to each and every public. Even I can go and check if I have any information, I can go and check that information on the Bitcoin network, on the Bitcoin blockchain. It is free for anyone to go and check it. That is the network of a Bitcoins. So mota moti understand ki jaise private or public. Public will actually have your trust factor. As I say, public is available to me, to available to Anil sir also, to available to Kuldeep sir also. So it actually creates trust in you. Private, again, it is with ICICI Bank. तो ICICI Bank चाहे blockchain use करके कोई information दे या blockchain use नहीं करके कोई information दे, doesn't matter, क्योंकि वो जो बोल रहा है मुझे वही मानना पड़ेगा. That is what the information is coming out from them. So let's see the type of blockchain. Public and private तो है ही सर. अब उनमें भी जो types हैं वो permission के हिसाब से divided है. There is a blockchain in public also and a permissionless कि सर कोई परमिशन आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी डेटा को आप खुद नया डेटा लिख रहे हैं या कोई भी डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, यू डू नॉट रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन एंड इट इज अवेलेबल फॉर एनीवन. दैट इज ट्रूली डेमोक्रेटिक. So that is a public blockchain and a permissionless blockchain. In a private and permissionless की ICICI बैंक ने सिर्फ सब ब्रांचेस को ब्लॉकचेन पे लाके रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग के लिए, and everybody has their own right to read all of the things. So they can read, like Chennai branch may know that how much funds is there at the Jabalpur branch, so they can see. So that is a private blockchain and there is no permission in that.
Similarly, there is a public blockchain which is permissioned. You can have that also. There are various things like a public blockchain. For example, a government can have a public blockchain where the governments are putting all the data, other agencies are putting all the data. You can go and verify that, but you do not have all the rights to read, to write on that blockchain, or to read something, to read all the information on that blockchain. So it is a public, accessible with everyone, accessible to everyone, but there are some permissions which require. And then again, private and permission, this is the most restrictive form. सर ICICI बैंक तक भी रिस्ट्रिक्टेड है, और ICICI बैंक में भी 3 जने हैं बंबई में बैठे हैं, वो यूज कर सकते हैं, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता. दिस इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ ए ब्लॉकचेन. बहुत से नई चीजें भी आई हैं सर. हाइब्रिड ब्लॉकचेन. तो हाइब्रिड क्या है सर? पब्लिक और प्राइवेट का. जैसे ICICI बैंक अपना एग्जांपल था, लेट अस से ICICI और HDFC दोनों ने मिला कि सर अपन नेफ्ट RTGS करते हैं, तो अपना RTGS जो भी होता है पहले RBI के पास जाता है सेटलमेंट होने के लिए, फिर होता है RBI के थ्रू होता है. सो लेट अस रिमूव RBI इन बिटवीन. अपन दोनों एक ब्लॉकचेन बना लेते कि कोई भी ICICI बैंक का पैसा, कोई भी ट्रांजैक्शन HDFC में होना है, आप सीधा डेटा शेयर कीजिए, अपन सीधा ही कर देंगे, RBI को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. तो that is a kind of a blockchain which can be created, that we call it as a hybrid. ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट नहीं है, 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, बट उनमें भी ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही प्राइवेट. सो एज पर योर नीड you can create a blockchain and you can go forward. Now, crypto assets. So sir, blockchain हमने समझा कि blockchain क्या है, कैसे होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है. अब ठीक है सर, हम टेक्नोलॉजी तो सब समझ गए, अभी क्रिप्टो एसेट्स के आगे, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन वगैरह बहुत सी चीजें हमारे सामने आती है, ये कहाँ से बीच में आ गई? तो सर मैं आपको एक चीज कहता हूँ. अपन ने इमेजिन करा कि फॉर एग्जाम्पल आज आप यहाँ पे कोई डेटा लेके बैठे हैं and you require some system where you trust it. So आपको क्या पता आज सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन और लेट अस से जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है. So you do not know. So you go to some blockchain, you ask there, you find the data whether it is correct or not. Somebody will verify for you, yes boss, this is correct. Now वो जो भी person है, why he will verify for you? Why he will have that data regularly getting stored on his computer? Just imagine why. So because whenever you are requesting that transaction, that ये बताइए न्यूयॉर्क के अंदर ये वाला पार्क कितने बजे तक खुलता है, and if he is providing that information, you are giving some fee for that. You should give some fee so that the person might generate an interest to provide that information to you. So for any public blockchain, see private तो वैसे भी मेरा ही खर्चा है, ICICI बैंक सोच रहा मेरा ही खर्चा, ठीक है, किसी और से क्या मतलब है. लेकिन अगर एक पब्लिक ब्लॉकचेन है सबके लिए, तो सब उसे क्यों सपोर्ट करेंगे? सब तभी सपोर्ट करेंगे जब सपोर्ट करने के लिए they are getting some reward. So when I am getting some reward, obviously I will do that work. So ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, जो रिकॉर्ड हुए जा रहे हैं ब्लॉकचेन पे, और उन्हें फिर वेरीफाई करने के लिए जितने भी पर्सन्स हैं, पीपल हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने पब्लिक ब्लॉकचेन को रेगुलरली अपने सिस्टम्स में अपडेट किया है ताकि मेरे पास में इंफॉर्मेशन रहे आगे वेरीफाई करने के लिए, दे विल गेट रिवॉर्ड ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर दे डू दैट. सो ये रिवॉर्ड बहुत नेसेसरी, जस्ट लाइक ए फ्यूल फॉर ब्लॉकचेन. कि सर हम सोचे ब्लॉकचेन कैसे चलेगा, क्या चलेगा, जस्ट लाइक ए फ्यूल फॉर अ ब्लॉकचेन, इट इज वेरी नेसेसरी. सर ये जो रिवॉर्ड है, ये ब्लॉकचेन में 2 टाइप का हो सकता है. एक रिवॉर्ड तो ये कि सर ब्लॉकचेन ने कहा कभी भी सर कि रिवॉर्ड हमने डिसाइड करा. अब जो ये हम रिवॉर्ड डिसाइड करते हैं, ये रिवॉर्ड है क्रिप्टो करेंसी. आप सब लोगों में सबसे ज्यादा फैमिलियर है बिटकॉइन से. वी विल टेक ऑल द एग्जांपल्स ऑन बिटकॉइन. सर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन. सो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन सर बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन बनी, वो बनी है कि सर तरुण मोदी ने मिस्टर अजय शर्मा को 1000 बिटकॉइन भेजे ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. इट्स जस्ट अ कैश ट्रांसफर रिकॉर्डिंग ब्लॉकचेन. तो ये ब्लॉकचेन गई, रिकॉर्ड हो गई, एंड इट इज सेव्ड ओवर देयर. नाउ इन फ्यूचर अजय शर्मा इज सेंडिंग 5000 BTC to Mr. Anil Yadav ji. Now how Anil Yadav will know that Ajay Sharma is actually having the real 5000 bitcoins?
So whenever Ajay Sharma is sending this transaction to Anil Yadav, the transaction will come into the blockchain, people will come and verify it, and if it is fine, that information will saved as a data in that blockchain with that hash, and the information will get saved and a block will created. तो जैसे भी एक नया ब्लॉक बनेगा तो ब्लॉकचेन के रूल्स होते हैं, हर ब्लॉकचेन के रूल्स के साथ जब भी एक नया ब्लॉक बनेगा हम 5 बिटकॉइन नए इशू कर देंगे, ठीक है। तो 5 बिटकॉइन मैंने नए इशू करे, जैसे एक ब्लॉक बना तो जिसने भी वो ब्लॉक को बनाया है, जिसने भी उसे वेरीफाई किया है, उसको 5 बिटकॉइन हम एज ए रिवॉर्ड देंगे, प्लस उसमें कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी आएगी कि तरुण मोदी जी ने अजय शर्मा को भेजा था, अजय शर्मा जी ने अनिल यादव जी को भेजा था। तो लेटर से जब तरुण मोदी जी ने 10,000 बिटकॉइन अजय शर्मा जी को बेचे तो तरुण मोदी जी ने 10,001 भेजे होंगे, क्योंकि एक बिटकॉइन मेरी ट्रांजैक्शन फीस बन गया। तो वो ट्रांजैक्शन फीस भी उस ब्लॉक के अंदर रहेगी, वो भी एज ए रिवॉर्ड किसको मिल जाएंगे, जिसने वेरीफाई किया हाँ तरुण मोदी जी ने अजय शर्मा को भेजा है, वैलिड है, तरुण मोदी जी के पास में 10,000 बिटकॉइन थे जो पहले फलाना फलाना जगह से आए थे। इतना ट्रांसपेरेंसी है सर, ठीक है। तो एक ब्लॉक के अंदर क्या रिवॉर्ड मिल गया, मुझे एक रिवॉर्ड ये मिल गया कि कोई भी नया ब्लॉक बना तो मुझे कुछ बिटकॉइंस मिल रहे हैं, और जो भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका ट्रांसफर फीस लगता है तो वो भी मुझे ट्रांसफर फीस के रूप में मिल रहा है। तो मैं सपोर्ट करूंगा बिटकॉइन ब्लॉकचेन को, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं पूरा डेटा लूंगा, जो भी ट्रांजैक्शंस रोज आ रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस को मैं चेक करूंगा पहले के ट्रांजैक्शन से कि हाँ सही है, इनके पास में पैसा है, ये ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस इज राइट, और मैं उसे वेरीफाई करूंगा, वहां पे वेरीफाई करके वो चीज रिकॉर्ड होगी, मेरे साथ 10 दूसरे जने भी वेरीफाई करेंगे, तब जाके वो कंफर्म्ड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ट्रस्ट सर, एक आदमी तो कुछ भी कह सकता है। सो वन इफ यू आर सेइंग दैट थिंग, देयर आर सो मेनी लेवल ऑफ कंफर्मेशंस इन वन ब्लॉकचेन। सो आज तरुण इंडिया के अंदर बैठा है ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन को लेके, देयर विल बी समवन इन चाइना, देयर विल बी समवन इन यूएस, देयर विल बी समवन इन न्यूजीलैंड, देयर विल बी समवन इन कनाडा। So they are confirming this. Yes, Tarun Modi has sent 10,000 BTC to Anil Yadav. Tarun Modi has 10,000 BTC. Once the transactions are confirmed, इस ट्रांजैक्शन के लिए दौड़ लगती है सर कि कौन पहले कंफर्म करता है, कौन पहले कंफर्म करता है। जो लोग जीत जाते हैं, जो लोग पहले आते हैं, दे विल गेट दीज रिवॉर्ड्स। हम ये पूरे ट्रांजैक्शन से रूबरू होंगे सर। ये बेसिकली अभी चीज आपको आइडिया देने के लिए ब्लॉकचेन के बारे में। जब भी नया डेटा आता है सर, एक नया ब्लॉक जनरेट हो गया, एक नया ब्लॉक जनरेट हो गया उसकी साइज ट्रांजैक्शंस के लिए, और जितना भी आपकी ब्लॉकचेन में डिफाइंड है कि सर एक ब्लॉक का साइज इतना होगा, 1 MB, 2 MB, 3 MB, जैसे ही इतनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई ब्लॉक बन जाएगा, एक हैश जनरेट हो जाएगा और वो ब्लॉक बन के चेन में जुड़ जाएगा। उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी जो कंफर्म हुई है, उस ब्लॉक का हैश आ गया और प्रीवियस ब्लॉक का हैश आ गया, और अब ब्लॉकचेन अगले ब्लॉक बनाने की तैयारी करेगी। ये जो प्रोसेस है सर, नए नए ब्लॉक्स बनाना, वेरिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड माइनिंग। आपने बहुत सुना होगा बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग। क्या होता है सर? ये होता है बिटकॉइन माइनिंग कि आपने सारे बिटकॉइन ब्लॉकचेन को अपने सिस्टम्स पे डाउनलोड करा हुआ है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे आता है, यू आर गोइंग इट, वेरीफाइंग इट, हाँ सर ये सही ट्रांजैक्शन है, यू आर वेरीफाइंग दैट ट्रांजैक्शन, एंड once you have verified it, that information will get recorded in the blocks. You are also getting your rewards. It is get stored, a block is created, and this is called mining. That in the blockchain you are creating new blocks और blockchain को आप बढ़ने में मदद कर रहे हैं. This is called a Bitcoin mining. It is not like that कि सर हम कहीं जाके और पहाड़ों में and other things we are excavating bitcoins. No, not like that. So two things are very much important. Whenever we say it about the blockchain, two things are very much important, are that proof of work and proof of stake. So sir, what is proof of work and what is proof of stake? Considering two things, सर हमारा जितना भी डिस्कशन हम रखेंगे वो डिस्कशन पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए रहेगा, क्योंकि प्राइवेट का इट्स लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, कोई मतलब नहीं है। और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आर क्रिएटेड है, ऑल आर ऑन अ पब्लिक ब्लॉकचेन, नथिंग इज ऑन प्राइवेट ब्लॉकचेन। अगर प्राइवेट होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो अब जो ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन, अब वो किस हिसाब से काम करते हैं सर? एक है प्रूफ ऑफ वर्क, दूसरा है प्रूफ ऑफ स्टेक। हमने सर अभी सीखा माइनिंग में क्या करा कि तरुण मोदी जी ने विजय जी को $10,000 भेजे थे, somebody has न्यूयॉर्क checked it and verified it. So verified होके न्यूयॉर्क वाला बोलेगा कि सर देखो ब्लॉक नंबर 83 के अंदर तरुण जी के पास में $10,000 आए थे,
और ये इनके पास में अभी भी वॉलेट में है, इसके आगे के ब्लॉक में कभी भी इन्होंने भेजे नहीं है. सो दे हैव द बैलेंस ऑफ 10,000 बिटकॉइन एंड नाउ दे आर सेंडिंग इट टू अजय जी 10,000 बिटकॉइन. सो दैट इज ऑल राइट. तो ये प्रूफ ऑफ वर्क न्यूयॉर्क वाला सबमिट करेगा ब्लॉकचेन पे. तो वो जो भी अपना वर्क कर रहा है वो वर्क को सबमिट कर रहा है ब्लॉकचेन पे कि सर ये देखो मैंने वर्क किया है, दिस इज माय प्रूफ. So that proof of that mining he will submit it to a blockchain. अच्छा, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, मे बी किसी का स्पीकर ऑन है सर. ओके, लेट इट बी. तो आगे चलते हैं. सो दिस इज द थिंग. न्यूयॉर्क वाला प्रूफ ऑफ वर्क के लिए अपनी जितनी भी अपने जितना भी वर्क उन्होंने करा ही है सबमिटिंग इट टू द बिटकॉइन ब्लॉकचेन. नाउ सर देखिए, न्यूयॉर्क वाला भी है, इंडिया वाला भी है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी है, यूएस वाला भी है, अमेरिका, लंदन भी है, चाइना भी है, सब जने हैं. तो सब भागेंगे. अब सब भागेंगे तो कौन पहले सॉल्व करेगा? तो जैसे जैसे ब्लॉकचेन बढ़ रही है, आप समझिए डेटा ज्यादा से ज्यादा आपके सिस्टम पे आता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा डेटा आता जा रहा है. तो ढूंढ के निकालना कि तरुण मोदी जी के वॉलेट में लास्ट टाइम बिटकॉइन कब आए थे, वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है. तो लोग क्या है, ज्यादा सीपीयू पावर, कोई 1000 गीगाहर्ट्ज लेके आया, कोई टेराहर्ट्ज पे जा रहा है. तो लोग ज्यादा से ज्यादा पावर यूज कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन खोज के लाएं और वेरीफाई करवा पाए कि हाँ देखिए सर ये सब वेरीफाई है, ये मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है जिससे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये चीज एकदम लेजिटिमेट है. तो अब जब सब लोग जुड़ जाते हैं तो ये जो कंप्यूटेशनल पावर है ना, ये ब्लॉकचेन की शक्ति बन जाती है कि कौन कितना जल्दी कर पाता है. तो हर माइनर की अपनी कंप्यूटेशनल पावर होती है. लेट अस से इफ यू हैव अ 1 टेराहर्ट्ज, तो शायद आप किसी भी प्रॉब्लम को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. इफ आई हैव 500 गीगाहर्ट्ज तो मुझे 8 सेकंड लगेंगे. तो यू आर हैविंग 1 टेराहर्ट्ज, आप हमेशा मेरे से पहले ही जाके अपना प्रूफ ऑफ वर्क सबमिट कर पाएंगे ब्लॉकचेन को कि सर देखिए ये है, मैं तो 2 सेकंड में ढूंढ के निकाल दिया. तो ऑब्वियसली दिस इज द गेम ऑफ पावर ऑल्सो इन ए ब्लॉकचेन, जो कि बिटकॉइन में बहुत आम बात है. So first thing in a public blockchain we know एक work stage होता है, that is a proof of work. Second आता है सर proof of stake. कुछ blockchain ऐसी आई है कि सर देखिए अब हर कोई डेटा के लिए भाग रहा है, हर कोई स्पीड के लिए भाग रहा है प्रूफ ऑफ वर्क में. तो 1 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज, तो कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है. तो एवरीबडी कांट डू इट. लाइक आज मैं अपनी बात करूं सर, आप और मैं, हम जैसे नॉर्मल लोग तो सोच भी नहीं सकते बिटकॉइन माइनिंग के लिए. द कॉस्ट इट टेक्स, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट इट टेक्स. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट टू रन so much of CPUs, the power, the heat that generates, so much of the thing. So हर कोई जाके बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर सकता. तो एक कॉन्सेप्ट लेटर ऑन डेवलप हुआ सर, प्रूफ ऑफ स्टेक. प्रूफ ऑफ स्टेक क्या हो गया सर? लेट अस से एक ब्लॉकचेन बनी, ब्लॉकचेन में डिफाइन हुआ कि सर टोटल, लेट अस से फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स ए रिपल. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे रिपल ब्लॉकचेन. तो रिपल ब्लॉकचेन में क्या है कि सर हम केवल 100 बिलियन रिपल्स इशू होंगे. ठीक है, ये 100 बिलियन रिपल्स हम आज बांट देते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग. अब अगर आपको अपने कंप्यूटर को एक नोड बनाना है हमारे ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए, तो आपके पास जो भी रिपल पड़े हैं आप इसको स्टेक करो, गिरवी रखना जो बोलते हैं, आप इसे स्टेक करिए हमारे पास. तो जिसका ज्यादा स्टेक होगा उसके पास ज्यादा पावर होगी. क्यों? क्योंकि सर देखिए मैं नहीं चाहूंगा कि वो ब्लॉकचेन फेल हो, क्योंकि वो फेल होगी तो मैंने जितने भी रिपल ले रखे हैं दैट विल ऑफ वेस्ट. So if I am having the more power in the form of ripple, मेरे पास में उतना ही पावर रहेगा और मैं उस नोड के लिए एलिजिबल होऊंगा. So there are 100 of peoples in all over this world who will be having this 100 ripples, 20 ripples, 50 ripples. They all will become अपने कंप्यूटर पे आके उस ब्लॉकचेन के लिए रिपल को स्टेक करेंगे और उस रिपल को स्टेक करने के बाद में दे विल गिव देयर पावर टू दैट ब्लॉकचेन कि सर कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा तो हम वैलिडेट करेंगे. तो वो जिसके पास ज्यादा स्टेक है दे विल गेट द मोर चांसेस ऑफ वैलिडेशन. तो इस वजह से वैलिडेशन में जो भी ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी वो उन्हें मिलेगी जो वैलिडेट कर रहे हैं. तो सर ये पूरी उल्टी चेन है कि मैं ज्यादा रिपल लूंगा, ज्यादा स्टेक करूंगा तो मेरे पास ज्यादा चांसेस मुझे मिलेंगे कि ट्रांजैक्शंस को मैं वेरीफाई कर पाऊं. वेरीफाई करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड में वापस रिपल मिलेगा, तो मेरा रिपल का काउंट बढ़ेगा.
तो ये सोच, ये वाली जो सोच है वो इस सोच पे डिपेंड करती है कि सर जिसका ज्यादा स्टेक है वो ऑब्वियसली सच्चा रहेगा अपनी ब्लॉकचेन के। और प्रूफ ऑफ वर्क ये है कि सर आप सच्चे हो तो आपका काम दिखा दो कि आपने सच किया है, मेरे को प्रूफ दे दो आपने काम किया है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंकिंग्स इन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क पे चलती है, दूसरी प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलती है। अब जो हमने देखा प्रूफ ऑफ वर्क, तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, रिवॉर्ड किसको मिलता है साहब, जो भी सबसे पहले काम करके ले आया। हमने एक पजल, ये एक ट्रांजैक्शन आया था तो आपको उसको क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड है वो पहले की, तरुण जी के पास 10,000 बिटकॉइन है तो आपने उसको क्रिप्टोग्राफिकली जितना भी था उसको कंप्यूट करके चीजें खोली, इंफॉर्मेशन देखी, उसको सही से जाना और हमारे सामने पेश किया, ये प्रूफ ऑफ वर्क आपने दिया, तो उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा जो पहले लेके आ गया। यहाँ पे जितने भी आपके रिवॉर्ड है वो स्टेकिंग के हिसाब से डिफाइंड होंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आपके रिवॉर्ड स्टेकिंग के हिसाब से जाएंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। सेकंड, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जितने भी नेटवर्क माइनर्स हैं, अब वो एक दूसरे से कंप्यूट कर रहे हैं यूजिंग देयर कंप्यूटेशनल पावर, राइट। रीफ्रेज इट कि आप यहाँ पे बैठे थे मुंबई में, आपके पास 1 टेराहर्ट्ज था, न्यूयॉर्क वाला 2 टेराहर्ट्ज यूज करके आपसे कंप्यूटेशन के अंदर एकदम टफ फाइट दे रहा है, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन निकाल के ला रहा है, आप भी इंफॉर्मेशन निकाल के ला रहे हैं। Whoever has more computational power will win and at the end of the day will win more rewards. तो हर किसी में कंपटीशन हो गया सर अपनी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ाने के लिए, ताकि हम जल्दी वेरीफाई कर पाए और हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिले। सो दिस इज अ कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इसी कंपटीशन की वजह से सर अब आज देखिए, फॉर एग्जांपल तरुण मोदी यहाँ बैठ के कर रहा है, मिस्टर हेनरी इज बेस्ड आउट इन ब्रिस्बेन यूरोप, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में वो भी एक कंप्यूटेशनल पावर लाके कर रहे हैं। अब तरुण और हेनरी कहीं से रिलेटेड है क्या? नहीं है। इसी तरीके से चाइना के अंदर भी कोई कर रहा है, हांगकांग के अंदर भी कोई कर रहा है, सिंगापुर में भी कर रहा है, यूएस में भी कर रहा है, यूरोप में भी कर रहा है। अब इतने सब लोग कर रहे हैं एक ही बिटकॉइन के लिए और सब लोग अपना पावर यूज कर रहे हैं ये बताने के लिए। क्या तरुण मोदी ने विजय जी को $10,000 भेजे, 10,000 बिटकॉइन भेजे, इज इट फाइन? तो जब सर 5 जने हाँ बोलेंगे तो ऑब्वियसली अगर कोई भी, विजय जी का ट्रस्ट बढ़ेगा कि सर तरुण जी एकदम मुझे सही करेंसी भेज रहे हैं, फेक करेंसी नहीं भेज। सो दिस इज हाउ एक ट्रस्ट जो है विजय जी का वो तरुण जी के ऊपर बढ़ेगा। सर, और वो ये किस वजह से बढ़ेगा? ना क्या ब्लॉकचेन की वजह से लगा दी है इसके अंदर। पहले मेरा चल रहा नहीं था अटेंडेंस का, तो थोड़ा कंसीडर कर लेना सर इसको, है ना। नवीन सर कंसीडर कर ले इनकी बात। ओके सर, प्लीज सर टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि वो सब अनम्यूट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क के लिए आपको कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट है। माइनिंग कम्युनिटीज, आपके सारी कम्युनिटीज अपनी कंप्यूटेशनल पावर ला रही है प्रूफ ऑफ वर्क दिखाने के लिए। और प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए कि सर मैं जितना बाहर से खरीद के या कोई भी आपके सिस्टम जो ब्लॉकचेन के लिए रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड लगा सकता हूँ, जितना स्टेक में दे सकता हूँ ब्लॉकचेन को उतना ही मुझे इन द एंड फायदा होगा। सो दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। नाउ सर विल कम टू बिटकॉइन। Why we call it as a father? Because it is the first ever blockchain. आपने भी शायद जितने भी क्रिप्टो एसेट्स होंगे, क्रिप्टो करेंसीज होंगी, उनमें नाम सुना होगा बिटकॉइन, सबसे ज्यादा नाम सुना होगा बिटकॉइन, बिकॉज सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर रेलेवेंट भी, दिस इज ओनली द क्रिप्टो करेंसी, इट्स द फर्स्ट वन। सर व्हेनेवर आई एम सेइंग क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट बोथ आर सेम थे। क्रिप्टो करेंसी एक नाम दिया गया था जब ब्लॉकचेन आई थी, उसके बाद में ब्लॉकचेन में बहुत फर्दर एडवांसमेंट हो गए, तो हर ब्लॉकचेन से करेंसी जनरेट हो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए एक नाम डिराइव होके आज आया क्रिप्टो एसेट्स। सो व्हेनेवर आई एम सेइंग क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो एसेंसी, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है सर, let's go about something what is Bitcoin. So Bitcoin, sir, it is the first ever cryptocurrency which is ever created. Okay. So there is a person called Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए व्हाइट पेपर दिया था कि सर ये व्हाइट पेपर है, दिस इज व्हाट द ब्लॉकचेन विल बी, दिस इज व्हाट एन इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, कि सर कोई भी लोग किसी को बिटकॉइन भेज रहे हैं तो ये ब्लॉक में रिकॉर्ड होगा, सिक्योर्ड होगा, तो कोई भी कभी भी इन फ्यूचर फेक नहीं कर सकता। जैसे फेक आज INR के अंदर somebody can give you fake notes, you can't trust, right? So उन्होंने ये चीज कही थी कि सर हर चीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन, और ये ब्लॉकचेन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब, people will verify it, so you cannot
lie to me, right? So Satoshi Nakamoto ने क्रिएट करा और बोला कि सर इस ब्लॉकचेन में केवल 21 मिलियन ही बिटकॉइंस जनरेट हो सकते हैं। सर ये करना क्यों जरूरी था? ये करना जरूरी था ट्रस्ट के लिए। आज सर फॉर एग्जांपल आज लॉकडाउन है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर गिविंग अप व्हाटएवर दे हैव इन द इकोनॉमिक पैकेजेस। सर पैसा कहां से छाप रहे? लेट अस से आरबीआई ने आज तक 50 लाख करोड़ रुपए छापे हैं सर, कल वो फिगर बढ़ के 55 लाख करोड़ हो जाएगा, फिर 60 लाख करोड़ हो जाएगा। इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। वी ऑल नो, वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी नो कि आरबीआई के पास कोई ऐसी सीमा नहीं है कि हाँ रुपए बस इतने ही छप सकते हैं, इसके ज्यादा तो छप ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो। They will have the gold reserves and they will minting money. This is what RBI is doing. This is what Fed is doing. This is what every central bank is doing. But Satoshi Nakamoto programmed it that sir, only 21 billion bitcoins, not more than that. Everybody will know sir, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही आज तक जनरेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो जनरेट होंगे ही नहीं। तो कोई आपको कैसे मैं 5 करोड़ बिटकॉइन आपको देता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड इट्स फेक। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन जनरेट हो ही नहीं सकते। ठीक है सर। अब बिटकॉइन का जो ब्लॉक है, ट्रांजैक्शन सर कर रहे हैं, तरुण जी ने विजय जी को भेजा, ऐसी बहुत से लोगों ने ट्रांजैक्शन करा होगा। तो एक ब्लॉक का जो साइज है वो अराउंड 1 MB के आसपास होता है, बिटकॉइन के ब्लॉक का साइज। और एक ब्लॉक में अमूमन आज के हिसाब से मैं बताऊं 10 मिनट्स लगता है। इतने ट्रांजैक्शंस आते हैं कि लोग अपनी कंप्यूटेशनल पावर से उसे 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करके एक ब्लॉक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर कर लेते हैं और 10 मिनट में एक ब्लॉक बन जाता है। यानी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक ऐड होते जा रहा है। हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड होते जा रहा है। ठीक है। एट प्रेजेंट जैसे मैंने आपको कहा था सर, 2 टाइप के रिवॉर्ड होते हैं। एक रिवॉर्ड होता है जो आपके ब्लॉक जब आपने क्रिएट करा तो ब्लॉक क्रिएशन के टाइम पे आपको रिवॉर्ड मिल गया, और एक रिवॉर्ड वो होता है जो ट्रांजैक्शन फीस के में वो। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में आज के दिन में अगर एक ब्लॉक क्रिएट होता है तो उसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है 6.25 बिटकॉइंस। जब ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन चालू हुई थी 2009 में, तब सतोशी नाकामोटो ने जब ये ब्लॉकचेन बनाई थी, सो दे हैव सेट अ रिवॉर्ड ऑफ 50 ब्लॉकचेन पर ब्लॉक। रिवॉर्ड रखा था साहब सर आप एक ब्लॉक बनाइए और आपको हम 50 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड देंगे। और उन्होंने ये प्रोग्राम भी डाला कि जैसे ही 2,10,000 ब्लॉक बन जाएंगे ये रिवॉर्ड आधा हो जाएगा। तो 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25 और 6.25 से फिर और कम हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो अभी जब पहले 2,10,000 ब्लॉक बने 50 से 25 हुआ, फिर 2,10 बने 25 से आपके 25 से 12.5 हुआ, और फिर जब 2,10 बने तो वो 25 12.5 से 6.25 रह गया। सो दिस इज हाउ बिटकॉइन के अंदर उन्होंने ये रिवॉर्ड का पूरा खाका ड्रॉ करा कि दिस इज हाउ जब भी ब्लॉक बनेगा रिवॉर्ड जो भी विनर है उसे डिस्ट्रीब्यूट। ये हमने कर लिया 2,10,000। तो अप्रोक्स 4 साल लग रहे हैं सर। 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है, उसके हिसाब से 4 साल में 2,10,000 ब्लॉक बनेंगे। तो अभी जस्ट 11 मई को, थोड़े ही दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है सर, 6,30,000, 2,10,000 इंटू 3, 6,30,000 ब्लॉक जनरेट हुआ था। तो 11 मई से पहले एक ब्लॉक पे 12.5 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड मिल रहा था। 11 मई के बाद दैट रिवॉर्ड हैज बिकम हाफ टू 6.25। अब शायद और हाफ होने में 4 साल लगेंगे। और सर इसी रेट पे अगर माइन करते रहे तो सर लास्ट बिटकॉइन, जैसा कि मैंने कहा था देयर आर 21 मिलियन बिटकॉइंस, राइट? सो लास्ट बिटकॉइन एज ए ब्लॉक रिवॉर्ड कब आ पाएगा सर? इन ईयर 2140, दैट इज स्टिल 120 years ahead. Why? बिकॉज सर कंप्यूटेशनल पावर इतनी चाहिए, कॉम्प्लिकेसी इतनी है कि 10-10 मिनट आप देखिए एक ब्लॉक को सॉल्व करने में लग रहे हैं कि हाँ 10 मिनट में एक ब्लॉक सॉल्व हो पा रहा है। So that's the complexity of the Bitcoin blockchain. Now, Bitcoin सर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेडेबल एसेट है आज के दिन में जिसकी सप्लाई आपको पता है। You know कि 21 मिलियन बिटकॉइंस ही जनरेट हो सकता है। You can also go online and check कि आज तक कितने बिटकॉइन जनरेट हो चुके हैं। अभी तक अराउंड 18.5 मिलियन बिटकॉइंस ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। शायद 2.5 मिलियन बिटकॉइंस ही जनरेट होना बचे हैं। So is there a limit on supply of money? Is there a limit on a supply of gold? Is there any limit on supply of US dollars? No. Every central authority is free to mint how much they want.
That is the pleasure or leisure they are having. So that is why Satoshi Nakamoto has invented. See, the सबसे बड़ी बात Satoshi Nakamoto, nobody knows who is Satoshi Nakamoto. ये एक आदमी है, एक ग्रुप है, they have just जो भी उनका क्रिएशन था, उनका व्हाइट पेपर था, उनका रिसर्च था, वो उन्होंने नेट पे डाला with the name of Satoshi Nakamoto. So वो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए. So nobody knows who is the inventor or creator of Bitcoin. Great. Okay, so this chain can be viewed on a blockchain.com. जैसा कि मैंने कहा कि sir, it is all live. Nothing is hidden. I'll just show you an example. I'll just show you how you can actually see the Bitcoin blockchain working live. So there is a website called blockchain.explorer. I've gone into that. You can go over there and check. See, this is the block number, the latest block number. This is the current price of Bitcoin, which is coming. It's around $9,136. And here it is, the block. So the last block which was created is 631. It was created within 1 minute. Maybe क्योंकि ज़्यादा transactions नहीं होंगे. उससे पहले वाला जो block था 63188. It was created in 22 minutes. And the person who has won it is F2 Pool. F2 Pool एक कंपनी है जो कहीं पे होगी. They have done the proof of work and showed it. कि सर हाँ, ये proof of work हम show कर रहे हैं और हमें आप इस चीज का reward दे दो. Now if you go into that block, you can find the all information over there. Like, see, this is the hash. So what is this blockchain hash? The hash is this. So this is the identification of this block. The previous hash will be found in local root. So here, all size and everything is there. So how many transactions are recorded in this block, sir? ट्रांजैक्शन है करीब 16,110 BTC इधर से उधर हुई है बहुत लोगों में, उसके हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं इस ब्लॉक में. अच्छा सर, ठीक है, इतने आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं. ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद सर इस ब्लॉक में नया रिवॉर्ड कितना आया है? 6.25. सो यू हैव गॉट इट 6.25 एज अ ब्लॉक रिवॉर्ड एंड फी रिवॉर्ड. क्योंकि ये जो 16,110 बिटकॉइन इधर से उधर लोगों ने भेजे होंगे, उसके लिए मैंने आपको कहा एक फी दी होगी. तो ये फी भी मिली है 1.09 बिटकॉइन. तो ये जो ब्लॉक रिवॉर्ड जैसे हमने बाहर देखा था एंट पूल या F2 पूल जिसने बनाया उसे ये रिवॉर्ड मिल जाएगा. और ये जो फी रिवॉर्ड जिसने भी वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है अलग अलग ट्रांजैक्शंस में, उसे ये फी मिल जाएगी. सो दिस इज हाउ दिस फी और दिस रिवॉर्ड will be distributed in the people who are sitting and verifying it for your behalf. तो सर बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या कुछ नहीं है. It's just a blockchain containing an information of your transactions. अब आप समझिए सर, 2009 में जब बिटकॉइन ब्लॉकचेन लॉन्च करी सतोशी नाकामोटो ने, उसके बाद में none of a central government, none of a central bank has supported it. No one supported it. आज 12 साल में बिटकॉइन ब्लॉकचेन चल के इतना आगे आ गई है. क्यों? That is because of a people like you and me. We have a trust कि सर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स में ट्रस्ट नहीं है, तो हम लोग आपस में जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम एक पब्लिक लेजर के अंदर उसको सिक्योर रखेंगे और वहां से जो भी कोई दूसरा ट्रांजैक्शन करेगा तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस पब्लिक लेजर में से देख के उसको वेरीफाई कर देंगे. तो हमारा आपस में ट्रस्ट है. People of India believes in a people of China, people of China believes in people of Japan, people of Japan believes in people of Hong Kong. We do not know the face of each other, we do not know the name of each other, but we know that. But we trust. Because of this, whenever we are sending any transaction, the transaction is getting verified on this blockchain and the trust is being built. So sir, bitcoins जब भी सेव होते हैं, ये सेव होते हैं एक वॉलेट में. जैसे अपने पास में पर्स होता है, वॉलेट होता है टू स्टोर मनी, वैसे डिजिटल वॉलेट होता है. जिस डिजिटल वॉलेट का नंबर सर कुछ ऐसा होता है डिजिटल, लाइक 37VYPI को मल्टी हैश नंबर होता है सर, इजी नंबर नहीं होता. तो जितनी भी आइडेंटिटी है वो या वॉलेट की आइडेंटिटी है. ब्लॉकचेन नाम नहीं है कि आज ये वॉलेट है तो यू डू नॉट नो ये किसका वॉलेट है, तरुण मोदी जी का वॉलेट है, अनिल यादव जी का वॉलेट है, नवीन शर्मा जी का वॉलेट है. लेकिन इस वॉलेट के अंदर 0.175 जो BTC थे वो इस वॉलेट ने इन दो वॉलेट को भेजे. ये ट्रांजैक्शंस कंफर्म हुआ है. पीपल हैज कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन कि सर इस वॉलेट के पास में चीजें थी. आप जाके ये भी देख सकते हैं कि इस वॉलेट के पास क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए. सो इस वॉलेट के पास आज तक 57 ट्रांजैक्शन हुए. इस वॉलेट में आज तक 3.125 BTC रिसीव हुए थे और इसने आज तक 3.03 BTC भेज दिए.
तो इस वॉलेट के पास में 0.0949 BTC बचे हैं. So if I come and say you sir I have 5 BTC, you can tell me sir just give me your wallet address, I can go online and check it whether you are really having 5 BTC or not. So with the wallet address you can check it. We also call it as a public key. See, जैसे कि digital signature में होता है sir, सब जानते हैं public key and private key. So this is a key which you can tell it to everyone. और इसको खोलने के लिए जो ताला, जो चाबी है, वो private key होती है. वो private key आपके पास में saved है, वो भी कुछ इसी type की होती है. So whenever you are sending it to another thing, that private key is required to be inputted it. जब आप उसको input करेंगे, वो transaction blockchain में चला जाए. तो सर दिस इज लाइक दैट. ये इस वॉलेट के आज तक के पूरा जन्म कुंडली सर आप देख सकते हैं. तब ये क्रिएट हुआ था, कितने ट्रांजैक्शन इसके हुए थे, 5 6 7 8 9 10. सो दिस इज हाउ द ट्रांसपेरेंट इज एंड दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर ट्रस्ट. द ओनली थिंग व्हिच यू डू नॉट नो कि वॉलेट किसका है, वो मुझे नहीं पता सर, ये वॉलेट किसका है. बट हाँ, आपको ये पता चल गया कि वॉलेट किसका है, तो आप ये जरूर देख सकते हैं कि उसने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए. दैट इज पब्लिक. So this is what blockchain explorer is. जैसे मैं आपको बताया, like Bitcoin blockchain, you can actually view it with your eyes. So that's the trust we are always having it. Okay, let's go to this. सर थोड़ा सा एक हिस्ट्री कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन का इन्वेंशन क्या, कैसे आज तक हम कहाँ पहुंचे हैं. सर 1991 में लोगों ने पहले चालू करा था कि सर देखिए कोई भी एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, किसी ने भी डाल दिया, या जैसे कि आज आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अपने ही काम की बात करता हूँ, असेसमेंट ऑर्डर पे डिजिटल सिग्नेचर्स आते हैं, आप लोग डिजिटल सिग्नेचर्स करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स पे. सो दोस आर हैविंग ए डिजिटल साइन. सो ये 1991 में सोच शुरू हुई थी कि सर जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है, क्यों ना ऐसा करें उसपे कोई एक ऐसा डिजिटल स्टैम्प लगाए जिसको कोई भी टैंपर नहीं कर सकता, और अगर टैंपर करेगा तो पता चल जाए. तो इस चीज की सोच से 1991 में चालू हुई. एक बड़ा ब्रेक थ्रू सतोशी नाकामोटो, जो कि मैंने बताया नोबडी नोस हु इज, वेदर अ ग्रुप और अ सिंगल पर्सन. उन्होंने एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया बिटकॉइन के ऊपर कि सर देखिए एक ट्रांजैक्शन होगा, ए से बी को जाएगा पैसा, ये ब्लॉक में रिकॉर्ड होगा, हम क्रिप्टोग्राफिकली इसको सिक्योर भी करेंगे, कोई भी इसको टैंपर नहीं कर पाएगा, और ये ब्लॉकचेन पब्लिकली अवेलेबल रहेगी. तो क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड है और ये वाइड स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रस्ट बढ़ेगा और उसे कोई भी देख सकता है. जैसे अभी हमने blockchain.com पे जाके देखा, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी. बोथ थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड. उन्होंने व्हाइट पेपर रखा डिस्कशन के लिए, और 2009 में बिटकॉइन ब्लॉकचेन को लाइव कर. In 2009 the Bitcoin blockchain goes live. 2010 में सर थोड़ा सा कॉमर्शियल चीज चालू हुआ. 2010 मई के अंदर, आज से जस्ट 10 साल पहले, एक पिज्जा यूएस में किसी ने खरीदा था टू गिव 10,000 BTC. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सर, एक बिटकॉइन का प्राइस था $9,100. दैट मींस अराउंड 6,70,000 rupees. Today's price 10 years before, for one pizza, let's say of 300 or 500 rupees, somebody has spent 10,000 bitcoins. तो इतना दूर हम चल के आ चुके हैं सर आज के साइड. 2014 में सर ब्लॉकचेन का नया रूप आया, ब्लॉकचेन 2.0. हम तो आज 2020 में ब्लॉकचेन समझ रहे हैं सर, 2009 से ये चीज चालू भी हो गई. 2014 के अंदर तो वर्जन 2 भी आ गया. वर्जन 2 क्या है कि सर ब्लॉकचेन को सिर्फ करेंसी के लिए यूज मत कीजिए, जैसे कि बिटकॉइन कर रहा है. बिटकॉइन के बाद सर बहुत प्रोजेक्ट है, लिटकॉइन, वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैव कम. लेकिन उन्होंने बोला कि सर ब्लॉकचेन इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट आप डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं, क्यों केवल करेंसी ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं. तो देन वन ऑफ माय फेवरेट्स, वाइटलिक बुटेरिनिक करके एक नाम का बंदा है, वाइटलिक करके, एंड ही केम एंड ही प्रेजेंटेड अ व्हाइट पेपर ऑन इथेरियम कि सर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, आप जाते हैं अब यू नो कि लैंड के अंदर भी कितने फेक टाइटल्स होते हैं, फेक रजिस्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फेक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. सो ही कम विद द आइडिया कि सर क्यों ना आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको ऑनलाइन कीजिए, मेक देम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट दोस कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ब्लॉकचेन सो एवरीबॉडी कैन वेरीफाई और ट्रस्ट बढ़ेगा. सो ही क्रिएटेड अ ब्लॉकचेन which is called Ethereum blockchain for smart contracts. Similarly, Ripple came. Ripple ने बोला सर अब मानिए आपका सर कोई इंडिया के अंदर बैठा है दिल्ली में, उसको पैसा भेजना है न्यूयॉर्क के अंदर. अब वो दिल्ली से बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, स्विफ्ट कोड से बैंक स्विफ्ट पे रिक्वेस्ट करेगी, कोई बैंक ऑफ अमेरिका के थ्रू न्यूयॉर्क में बैठ के ट्रांजैक्शन होगा, 5 मीडिएटर आ गया, पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा. तो रिपल ने क्या इन्वेंट करा सर,
एक रिपल नेटवर्क पे सारे बैंक्स आ जाएंगे दुनिया के। बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली ब्रांच है, वो सीधा बैंक ऑफ अमेरिका ऑरलैंडो रोड ब्रांच ऑफ न्यूयॉर्क से कांटेक्ट करेगी, सर आपके ब्रांच में ये खाता है, मैं अभी आपको इतने पैसे भेज रहा हूँ थ्रू रिपल, आप उसके खाते में क्रेडिट कर लो। ये जो वो भेज रहे हैं ये ब्लॉकचेन पे वेरीफाई होगा। वंस इट गेट्स द वेरीफाइड इट ब्लॉकचेन, हाथों हाथ जो भी ऑरलैंडो रोड न्यूयॉर्क ब्रांच का खाता है वहां पे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन विद इन अ मैटर ऑफ 50 सेकंड्स, विद इन अ मैटर ऑफ 15 सेकंड्स, आई एम सेइंग 15 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगर आप लोगों के क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं स्विफ्ट से पैसा आना और जाना, इमेजिन दैट प्रोसेस and imagine the process invented by Ripple, which will take 15 seconds to get your funds created or get your funds transferred via banking system at whatever place you want in this world. So in 2017, the first hard fork in Bitcoin blockchain. सर ये एक और टर्म है, ये थोड़ी ज्यादा टेक्निकल टर्म है, फोक, FORK. So फोक क्या होता है सर? जैसे आज सब बिटकॉइन चल रहे हैं, अभी हमने सोचा कि एक बिटकॉइन है, उसके अंदर साइज कितनी होती है 1 MB, ठीक है सर। तो अब जब इतने सारे लोग हैं वो कंसेंसस बनाते हैं कि सर ठीक है 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाई थी, उनको क्या पता कि आज के टाइम में 1 MB कितना हो जाएगा। सर आज के 3 महीने पहले हम 1 महीने का 1 GB का पैक लेते थे, आज हमारे दिन के 5 GB कम पड़ रहे हैं। तो आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी करो ना, तो सर आज के हिसाब से इस ब्लॉक को बढ़ाएं तो क्या होता है, सब जने जितने भी पब्लिक में है बिटकॉइन ब्लॉकचेन तो वो कंसेंसस पे बनाते हैं कि सर अभी तक जितने ब्लॉक बने वो तो बन गए, नेक्स्ट ब्लॉक में हम कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस करेंगे जिससे उसकी मान लीजिए हम साइज बढ़ाते हैं या कोई भी दूसरी चीज जो भी फंक्शनैलिटी है वो बढ़ाते हैं, तो वहां से एक नई ब्लॉकचेन चालू हो जाएगी। तो पुरानी वाली तो चलेगी, नई वाली अलग से चलने लग जाएगी, उसके लिए एक नई क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। तो यही 2017 में कुछ लोग थे कि सर ज्यादा इंफॉर्मेशन रखो ताकि अच्छा रहे, तो बिटकॉइन कैश करके एक नया जन्म हुआ नई करेंसी का। इसके अंदर जो ब्लॉक थे उनकी साइज 8 MB हो गई, 8 times more than the real blockchain. So a new blockchain has obviously emerged. In 2020 sir, आज के तारीख में ये चीज है, there are more than 5,000 blockchain projects, 5,000 blockchain projects which involves cryptocurrency are like, जैसे सर इंडिया के अंदर NSE, BSE एक्सचेंजेस हैं, you can go and check it. वैसे ही सर एक सबसे अच्छा एक्सचेंज, एक एक्सचेंज है, और एक्सचेंज नहीं कहूंगा, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन पोर्टल लाइक कॉइन मार्केट कैप। यू कैन गो टू कॉइन मार्केट कैप, यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर व्हाटएवर द क्रिप्टो करेंसी यू वांट, व्हाटएवर द क्रिप्टो करेंसी जो कि आज चल रही है। लेट्स सी, इट विल शो यू कॉइन मार्केट कैप। ये तो बताएगा आज तक की क्रिप्टो करेंसीज 5,500 क्रिप्टो करेंसीज हैज बीन जनरेटेड। 22,000 मार्केट से जहां ट्रेड होता है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, टोटल 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है क्रिप्टो करेंसीज में वो इतना है, एंड बीटीसी डोमिनेट 65.8 कि सर बीटीसी एक साइड बाकी सारी करेंसी एक साइड। तो सर इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 65.8% तो सिर्फ बिटकॉइन का है, बाकी 35% दूसरी करेंसीज है, 5,515 बाकी जो दूसरी करेंसीज है वो 35% ही होल्ड करती है। यहाँ पे सर मार्केट कैप आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी, वॉल्यूम्स आ जाएंगे, जाके आप हिस्ट्री देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं। हियर यू कैन गो एंड चेक इट आउट, कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पे ये क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड होती हैं। यहाँ पे आप सारी करेंसीज के नाम, यहाँ सारे एक्सचेंजेस के नाम आ जाएंगे। बाइनेंस है, कॉइनबेस है, बिटमैक्स है, क्रैकेन है, इंडोडेक्स है। बाइनेंस इज द बिगेस्ट एक्सचेंज। लेट मी शो यू बाइनेंस। I'm not logging into my account, but I'm just showing you. Okay, so now this is Binance. You can actually trade it over here. You can go to the market. Here you can buy crypto. So this is the like market at the Binance. You can see like BTC is trading BTC in the USDT. So USDT again, what is that? It is a Tether currency which is normally USD. So this will be always equivalent to 1 USD. So there is a currency BNB, there is a currency BTC. So BTC is trading it over there, and USDT, you can see the trade of Bitcoin on Binance which is going on. There are so many currencies, different currencies on which the trade is there. So see, it is like the graph of that, and it has been increased in last 1 hour. Maybe they know that we are actually understanding the blockchain technology. तो सब लोग इतना सीख जाएंगे, तो there will be again people will go and buy. So again, that's
that shoot up around $300 in last 1 hour. So the current now price of Bitcoin is $912. So this is how the trading is happening. We all have seen. We are trading regularly in shares, so we know how it is happening. Currency के साथ सबसे बड़ी चीज ये the trade. There is no regulated thing, right? हमने कहा public blockchain app है, मैं है, तो कौन है trade रोकने वाला? That's why. तो ये जो trade है ये 24/7 चलता है. All the 365 days of a year. एक second के लिए भी currency trading, currency जब भी मैं कह रहा हूँ currency, that means cryptocurrency trading on different exchanges stop नहीं होती. So this is what I've shown you, the Binance. This is the biggest exchange in this world for crypto assets, and this is CoinMarketCap.com, a one-stop solution for you to gain an understanding of what the cryptocurrency is. ये cryptocurrencies करती क्या हैं? इतनी 5,500 बन तो गई. What they are doing, उनके functions क्या? आप उनके websites पे जा सकते हैं, blockchains के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या करते हैं. What EOS doing? Tezos, Cardano, Chainlink, Stellar, so many. So you can go and refer them. Okay, हम थोड़ा आगे चलते हैं सर हमारी साइड. This is what the history of the blockchain which we have seen. Now the transaction. ये ट्रांजैक्शन के लिए हमने समझा सर. एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेते हैं कि ट्रांजैक्शन होता कैसे होगा ब्लॉकचेन पे. सर मैंने रिक्वेस्ट करा, पैसा जो मैंने बताया तरुण मोदी जी ने विजय जी को 10,000 बिटकॉइन भेजने थे, तो उन्होंने भेजे. विजय जी ने रिक्वेस्ट करे, ये ट्रांजैक्शन गया ब्लॉकचेन पे. इतने सारे कंप्यूटर हैं सर, सब आपस में कनेक्टेड है. देखिए सबके पास डेटा सेव है, सब कंप्यूटेशन कर रहे हैं कि नहीं ये सही है कि नहीं है. जिसके पास ज्यादा हैश पावर थी वो कंप्यूट करके ट्रांजैक्शन को ब्लॉक के अंदर भेजा कि सर ये देखिए मेरा प्रूफ को ब्लॉक के अंदर डाल रहा हूँ. वो इंफॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर आ जाती है. मिली है जो यहाँ पे तरुण जी ने दी थी, वो फीस भी जनरेट होके इनके लिए रिजर्व हो जाती है कि सर आपको मिलेगी. वंस जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं और ब्लॉक का साइज पूरा हो जाता है, लेट अस से 1 MB इन द केस ऑफ ए बिटकॉइन ब्लॉकचेन, ये आपका 1 MB पूरा हो गया, ये एक पूरा ब्लॉक बन जाएगा और ब्लॉक बनके आपकी जो ऑलरेडी चेन चल रही है ब्लॉकचेन की उसमें जुड़ जाएगा. और ये फिर जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन है नए ब्लॉक के साथ सारे कंप्यूटर्स अपडेट कर लेंगे. ये डेटा अपने आप डाउनलोड होता रहेगा उनके कंप्यूटर्स पे कि नए ब्लॉक्स बन गए, नए ब्लॉक्स के ये हैश, नए ब्लॉक्स के ये ट्रांजैक्शन. दिस इज द इम्पोर्टेंस. तो अगेन ये जो भी ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ये यूं ही चलता रहेगा. ये किसी भी ब्लॉकचेन में ले लीजिए सर. यू रिक्वेस्ट समथिंग, पीपल विल वेरीफाई इट एंड अगेन सेव इट इन द ब्लॉक, नेक्स्ट block. The block will go and connect with the blockchain, and this is how your chain will go off and it will increase day by day. So this is how a transaction happens on a blockchain. Now sir, security, ये point हमने थोड़ी देर पहले के लिए छोड़ के रखा था. सर ये तो बताओ फिर कैसे है तो at the end of the day टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर है, कैसे सिक्योर कैसे. अब सर समझिए प्रूफ ऑफ वर्क. हमने एक चीज समझी थी, आपको याद होगा, हैश. तो हर ब्लॉक में खुद का हैश तो होता ही है और ये भी होता है कि सर मेरे से पीछे वाला हैश कौन सा है. मारवाड़ी में भी कहावत है वो कि मैंने पीछे वाले ठाणे वाली कि मैं तो पता ही हूँ, मेरे को ये भी पता है कि मेरे पीछे कौन है, तो इसलिए मैं हमेशा कंजंक्शन में आगे चल रहा हूँ. तो लेट अस से कोई आदमी आता है, ही वांट्स टू अल्टर सम इंफॉर्मेशन which is already saved in this block number 74. तो अब उसको क्या करना पड़ेगा सर? उसको ब्लॉक 74 में जैसी वो इंफॉर्मेशन चेंज करेगा तो हैश भी चेंज हो जाएगा. अलग क्रिप्टोग्राफी का अलग हैश होगा. वो हैश चेंज हो गया तो इस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा. अब इस ब्लॉक का जो हैश है, जब ये ब्लॉक चेक होगा कि इस ब्लॉक में प्रीवियस हैश क्या था, तो ऑब्वियसली वो इस ब्लॉक के हैश से नहीं मिलेगा. तो ये कोई भी जो वापस सारे कंप्यूटर्स बैठे हैं वो बोलेंगे कि सर ये चीज गलत है, दिस इज नॉट द राइट थिंग इज हैपनिंग, देयर इज सम डिस्कनेक्ट इन बिटवीन. ये ब्लॉकचेन सिमेट्री में नहीं चल रही. तो अगर किसी भी माइनर को कोई भी चीज ब्लॉकचेन में चेंज करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 74 नंबर के ब्लॉकचेन को तो मैं चेंज कर ही रहा हूँ, हैश हो ही रहा है. फिर मुझे जाके इन सब ब्लॉक्स में वो हैश चेंज करने पड़ेंगे कि इससे जो नया जनरेट हुआ वो इसका प्रीवियस, फिर नया जनरेट हुआ वो इसका प्रीवियस. ये सब करते हुए मुझे आगे पहुंचना पड़ेगा कहाँ तक? उस ब्लॉक तक जो अभी क्रिएट हो रहा है, जो लाइव चल रहा है. और वो भी मुझे पहुंचना पड़ेगा कब तक? इस ब्लॉक के क्रिएट होने से पहले.
क्योंकि जैसे ही ब्लॉक क्रिएट हुआ अगेन पूरी की पूरी नई ब्लॉकचेन सबके कंप्यूटर्स पे गई और मैंने जो भी 74 में चेंज किया था दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो आप समझिए सर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आदमी 74 नंबर ब्लॉक पे कुछ भी चेंज करके, क्या उसके पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर है कि वो अपने से अलग चला जाए? एक आदमी आज ब्लॉकचेन जो कि वाइड स्प्रेड है पूरी दुनिया में, पीपल आर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ टेराहर्ट्ज ऑफ स्पीड टू देम, so for a single people or for a group of people, whether it is possible to change one block, recompute all the blocks and do it before the generation of a single new block? Practically impossible. So this is why I said this is secure, and this is why you can't cheat Bitcoin. I hope you understand this, how the security is of prime importance in blockchain and how the previous hash stored in a current block is important for the security purpose in a blockchain. तो इसीलिए सर जो हमने प्रीवियस हैश सीखा था वो प्रीवियस हैश का यूज यहाँ था, इट विल मेक अ ब्लॉकचेन मोर सिक्योर एंड ऑल दिस इज प्रूफ ऑफ वर्क व्हिच वी हैव जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या होता है. सो दिस इज ऑल डन बाय प्रूफ ऑफ वर्क. सो दिस इज द सिक्योरिटी. सो वी हैव सीन ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स हैं सर, चेन में जुड़े हुए डेटा है, हैश है, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड है, इट्स ए ब्लॉकचेन, सब कंप्यूटर्स पे है. दुनिया के जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है करना, आपको मैं बताऊं सर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपनीज बना के उन्होंने पावर खरीदा हुआ है, सीपीयूज खरीदे हुए हैं टेराहाइट्स, एंड नाउ दे आर डूइंग कंप्यूटेशनल. जो मैंने आपको बताया था या एंट पूल, ओटो पूल, लाइव पूल, बीटीसी डेटा, एवरीबडी दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ हैश पावर एंड दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ बिटकॉइन माइनिंग इटसेल्फ. ताकि जो भी ब्लॉक बनता है, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है सर, एक ब्लॉक 6.25 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड देता है. So $9,000 के हिसाब से you will get a $60,000 rewards in 10 minutes if you confirm a transaction. So everybody has made it as a business. So everybody, जहाँ पे भी अगर सर आप 1 मिनट के लिए भी ना तो अपना कंप्यूटर बंद कर सकते हैं, सिस्टम बंद कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि again the people will come and do that. And this is the power of a Bitcoin. जितना मैं डाइवर्स होऊंगा उतना मेरा ट्रस्ट बढ़ेगा. और ये ट्रस्ट सर 2009 से लेके 2020 तक चल रहा है बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के सपोर्ट के. सो वी हैव केम थ्रू दिस 12 इयर्स आपस ही हाथों में हाथ बांधे रखे. ठीक है सर, अब ये चीजें तो हो गई, हमको ब्लॉकचेन समझ गया, हमको ये समझ गया कि सर क्रिप्टो एसेट्स क्या होते हैं, कि सर ब्लॉकचेन में फ्यूल की तो जरूरत है, तो जो भी रिवॉर्ड मिलेंगे वो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती है. अब इसकी क्या लीगैलिटी है सर? एक सिंगल पॉइंट जवाब है कि आज की तारीख में कोई लीगैलिटी नहीं है इंडिया में. बहुत से ऐसे देश है जहां पे भी अभी कंफ्यूजन है कि सर क्या है ये करेंसी है, ये एसेट है, ये गुड्स है, ये कमोडिटी है, ये सिक्योरिटी है, क्या है? मतलब वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सर बिटकॉइन क्या है? बोले सर फिजिकल तो कुछ है नहीं, एक चेन है, चेन के अंदर क्रिएट हो गया, अब हम इसको करेंसी माने, करेंसी जैसे ट्रेड होती है, या एसेट माने क्योंकि गोल्ड जैसी बात इसमें आ सकती है, या फिर इसको एक कमोडिटी माने जिसे हम ट्रेड करते हैं, या फिर इसको हम गुड्स माने. अब सर ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, वी नो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी की चीज की भी लीगैलिटी एज वेल एज टैक्सेबिलिटी डिसाइड करने के लिए. अगर मैं बोलूँ आपको गुड्स, आप बोलेंगे सर जीएसटी लगाओ. मैं बोलूंगा कि सर कमोडिटी, आप बोलोगे सर कमोडिटी के सारे रूल्स अप्लाई करो. मैं बोलूंगा नहीं नहीं सर ये तो एक सिक्योरिटी है, बोले सिक्योरिटी तो सर सेबी बीच में आ जाएगा, आप सिक्योरिटी के रूल्स लगाओ. तो जीएसटी में भी प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स में प्रॉब्लम कि सर मैं कैपिटल गेन में लेके जाऊं, बिजनेस में लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, अदर सोर्सेज में लेके जाऊं, क्योंकि कैपिटल गेन लगेगा कैपिटल एसेट पे, तो क्या है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फिट होता है? तो सो मेनी कंफ्यूजन्स, बट देयर इज अ सिंपल थिंग ओवर हियर सर. लेट अस अंडरस्टैंड देयर इज नो करंटली स्पेसिफिक रूल्स एंड लॉ right now in India, and we will understand कि आज तक भारत में क्या क्या हुआ है, जिसके हिसाब से हम थोड़ा सा रीजनेबल आइडिया लगा पाए कि आज भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति क्या है. So let us go into that just a moment. On the legality front, so many events recently has happened. इंडिया में अभी तक सर स्टेटस को था, आरबीआई सर्कुलर्स निकालता था, बोलता था कि सर वर्चुअल करेंसीज जो है
दे आर हार्मफुल, क्योंकि सर बहुत से स्कैम्स हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइंस आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, ये अवेयरनेस लोगों में थी नहीं सर, लोगों को पता ही नहीं। मैं आके बोलता सर आपको बिटकॉइन दिला दूंगा, लोग ट्रस्ट के लिए हाँ ठीक है साहब ये दिला देगा, और वो स्कैम्स निकल जाता था। क्योंकि आप खुद जाके चेक कर सकते कि सामने वाला बंदा बोल रहा है इसके पास है भी कि नहीं, और वेदर ही इज गिविंग मी इज रियल और नॉट, यू कैन गो एंड चेक ऑन द ब्लॉकचेन इटसेल्फ। तो सर स्कैम्स होते थे, और ऑब्वियसली स्कैम्स आपको भी पता है, जब किसी चीज की नॉलेज नहीं तो स्कैम होना बहुत आम बात है, इसलिए स्कैम्स होते थे। तो इंडिया कंसिडरिंग द नॉलेज लेवल वी आर हैविंग टू दिस टेक्नोलॉजी दैट टाइम, गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने भी बहुत टाइम ये चीज बोला कि सर रहने दीजिए, हम केवल लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएंगे कि मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए, यही उन्होंने कहा। जब 2018 एक ऐसा टाइम आया सर इंडिया के अंदर, देयर विल बी मोर देन 20 मिलियन यूजर्स हु आर डूइंग ट्रेडिंग इन ब्लॉकचेन, एंड 500 करोड़ से ज्यादा डेली का ट्रांजैक्शंस हो रहे। तब आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, 6 अप्रैल 2018 को। सर्कुलर निकाल के क्या कहा सर, इंडिया में एक्सचेंजेस हैं जैसे बीएसई एनएसई, वैसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है, मैंने आपको बताया बाइनेंस है, वैसे इंडिया में बहुत से एक्सचेंजेस हैं, आई विल शो यू दैट आल्सो, वजीरेक्स, बिटबीएनएस। लोग वहां जाते हैं, अपनी केवाईसी करते हैं, ऑब्वियसली आधार पैन सब सबमिट होता है, उसके बाद वहां से बिटकॉइन खरीदते हैं। सिर्फ देखिए आज के टाइम में आपने ये तो मुझे नहीं कहा ना कि बिटकॉइन इज इलीगल इन इंडिया, तो मैं जाके खरीद तो सकता हूँ, वहां खरीद सकते हैं। तो मैंने एक्सचेंज पे गया, मैं मेरी पूरी केवाईसी भी दे रहा हूँ, आधार दे रहा हूँ, पैन दे रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम गिविंग यू, और मैं अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे से बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, तो गलत क्या है? तो लेकिन आरबीआई कैसे भी इसको रोकना चाहती थी, तो आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर निकाल के क्या बोला सर, आप आरबीआई अब आपको तो डायरेक्ट कर नहीं सकती, तरुण मोदी को, अनिल जी यादव को, कुलदीप जी को आरबीआई डायरेक्ट नहीं कर सकती। तो आरबीआई ने क्या करा कि सर मैं एंटिटीज रेगुलेट करते हैं, बैंक उसी की वजह से ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन्होंने बैंक को कहा कि सर आप कोई भी बैंकिंग सिस्टम किसी भी एक्सचेंजेस को जो क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, या किसी भी आदमी को जो क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, बैंकिंग सिस्टम नहीं देंगे। सो आरबीआई के सर्कुलर से क्या हुआ, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थे टुवर्ड्स क्रिप्टो एसेट्स ऑल वर सीज्ड। तो एक तरीके से सर आप आयरनी देखिए कि क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज इलीगल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के लिए पैसा देना बंद हो गया। तो ऑब्वियसली जो एक्सचेंजेस थे उन्होंने इसके खिलाफ रिट पिटीशंस भी लगाई है, उस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ में गवर्नमेंट ने ये चीज देखते हुए अरुण जेटली द देन फाइनेंस मिनिस्टर इन 2018 उन्होंने अपनी बजट स्पीच में बोला कि सर हम क्रिप्टो करेंसी को कभी लीगल नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको हम जरूर यूज करेंगे। तो सर एक चीज की बात आती है कि सर जब आपको ब्लॉकचेन बिना क्रिप्टो करेंसीज के क्या सर्वाइव, अभी हमने देखा सर ब्लॉकचेन क्या कोई भी बना लीजिए, आप बना लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप वैसे ही सेंट्रलाइज सिस्टम में कर रहे हैं। आपको अगर कोई चीज पब्लिक में लानी है तो पब्लिक में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए पब्लिक वैलिडिटी होनी चाहिए। पब्लिक वैलिडिटी के लिए आपको कुछ रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा, और अगर आप वो रिवॉर्ड नहीं दोगे तो फिर क्रिप्टो करेंसी जनरेट नहीं होगी, तो फिर ब्लॉकचेन का मतलब ही क्या, वो तो आपका सेंट्रल सिस्टम ही हो गया एक तरीके से, राइट। तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, और उन्होंने 2019 में एक बिल दिया गवर्नमेंट को, बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन। सर हमको तो बैन करना है, वी डोंट वांट एनीथिंग, हमको तो क्रिप्टो करेंसीज बैन करना है। अब ये भी देखेंगे कि इस बिल में उन्होंने क्या दिया। फिर जो ये सर्कुलर था आरबीआई का, इस सर्कुलर के खिलाफ जितने भी एक्सचेंजेस थे, कुछ लोग थे, वो सुप्रीम कोर्ट में दे हैव फाइल्ड अ पिटीशन कि सर जब आपने वर्चुअल करेंसी को ही बैन नहीं किया, तो ये चीज कैसे आप बोल रहे हैं कि सर मुझे बैंकिंग सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। सो वो आर्टिकल 19(1)(g) के लिए सुप्रीम कोर्ट गए कि सर मेरा राइट टू बिजनेस, राइट टू लीगल प्रोफेशन, राइट टू हैव मुझे बिजनेस करने का राइट है, तो जब तक वो एक्सप्लिसिटली बैन नहीं है, nobody can deny that right to me। और आज के टाइम में सर बैंकिंग सर्विसेज के बिना मैं वो बिजनेस कर ही नहीं सकता। तो एक तरीके से आरबीआई हैज चोक्ड माय नेक टू डू दैट बिजनेस व्हिच इज नॉट इलीगल। तो ये पॉइंट को रख के सर दे हैव गॉन इनटू सुप्रीम कोर्ट एंड दिस डिसीजन हैज केम आउट रिसेंटली 4 मार्च 2020। दिस इज 3 मार्च 2020, आप सबने पढ़ा होगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड जजमेंट। मतलब मैं आपको सबको सर एक चीज मैं शॉर्ट में तो बता ही रहा हूँ कि जजमेंट क्या है, बट मैं आपको सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, गो एंड रीड दिस जजमेंट। दिस सच ए ब्यूटीफुली रिटन जजमेंट about the role of the RBI and the identifications of the VC.
सर जो भी पिटिशनर गए, पिटिशनर सर 2 ग्राउंड पे गए। पहली चीज के लिए पिटिशनर्स ने खुद बोला कि सर वर्चुअल करेंसीज तो गुड्स और कमोडिटी है, ये लीगल टेंडर या करेंसी तो है ही नहीं, ना ये कंट्री के आपके क्रेडिट सिस्टम में यूज होती है, तो आरबीआई का तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सर इसके ऊपर। तो आरबीआई ने सर्कुलर जारी करना ही गलत है। आरबीआई सर्कुलर जारी करके इन चीजों के बारे में बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी। पहला कि सर एक तो हम देखते हैं कि रोल ऑफ आरबीआई, कि सर आरबीआई का क्या रोल है, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट पता लगा पाएगा कि आरबीआई के जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोल ऑफ आरबीआई के लिए प्रीएम्बल ऑफ द आरबीआई, आज तक की हिस्ट्री, दूसरे सेंट्रल बैंक्स की हिस्ट्री देखी और सोचा कि आरबीआई के पास में एक ऑब्लिगेशन है टू ऑपरेट अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आरबीआई के पास है, इवन गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट। तो आरबीआई के पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही वाइड पावर्स हैं टू ऑपरेट द करेंसी, क्रेडिट और पेमेंट सिस्टम ऑफ ए कंट्री। कोर्ट ने यहां तक बोला कि सर आरबीआई कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, लाइक जो दूसरी संस्था होती है उसमें या तो वो संस्था काम कर ले या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मशीनरीज या दूसरे एग्जीक्यूटिव्स भी काम कर सकते हैं, लाइक सीबीडीटी। सीबीडीटी नहीं करते, गवर्नमेंट कैन डू द नोटिफिकेशंस if CBDT is not doing that, like CBIC, if CBIC not doing it, officers can do it, commissioners can do it, government can do it, but RBI के पास में सर बहुत exclusive rights है। Indian currency bank notes even government cannot issue it, only RBI can issue it। लिखा हुआ था ना सर गवर्नर के साइन, so government has no power over it, only RBI। so RBI दूसरे जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, सेबी, सीबीडीटी, सीबीआईसी, उनसे बहुत अलग है। आरबीआई का जो रोल है वो बहुत अलग है और हमको उस सेंस में समझना पड़ेगा कि आरबीआई के पास जो भी पावर्स है वो बहुत वाइड है व्हेन इट कम्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, करेंसी या क्रेडिट पेमेंट सिस्टम कंट्री की संभालने को। ठीक है सर। तो अब जब आरबीआई के पास इतने वाइड पावर है तो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम्स के सामने एक रिस्क पोजेस कर रही है, हम कह सकते हैं कि yes, RBI has power to regulate it, and whenever we say it is a power to regulate it, it contains the power to prohibit also। तो हमने एक ये चीज पे तो आ गए कि सर जो आरबीआई के पास में आप ये नहीं कह सकते कि सर जुरिस्डिक्शन की बात है तो गवर्नमेंट कुछ बताएगी। आरबीआई के पास बहुत सी ऐसी पावर्स भी हैं जो वो सोल अपने बेसिस पे करता है, नॉट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। सो आरबीआई का रोल बहुत अच्छा से डिस्क्राइब्ड एज जजमेंट में। आई जस्ट रिकमेंड यू टू गो एंड रीड the role of a RBI with respect to India। Second, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी कि सर चलिए हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं VCs का। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पूरी दुनिया के जितने भी केस लॉज हुए थे, जितने भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स थी, IMF की रिपोर्ट्स थी, सेंट्रल बैंक्स की रिपोर्ट्स थी, सब पढ़ी। सब पढ़ के सर सुप्रीम कोर्ट ने एक एनालिसिस ये दिया कि सर जुरिस्डिक्शन है, उन्होंने VCs कमोडिटी, किसी ने सिक्योरिटी, किसी ने करेंसी, किसी ने पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सबने अलग अलग करा है। While all these descriptions are true कि ये उसकी एक क्वालिटी तो बताते हैं, बट कोई भी ये चीज अपने आप में होल ट्रुथ नहीं है। जैनिज्म में थ्योरी है सर अनिकांतवाद की, they have applied that theory over itself कि there are different jurisdictions have identified it differently, but nobody has identified it perfectly। Now we are going to identify it perfectly। वहां पे उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन देखी, गुड्स की डेफिनेशन के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दे हैव टोल्ड कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स की डेफिनेशन में मनी को बाहर रखा गया है, सो मनी इज नॉट गुड्स। फिर उन्होंने मनी की डेफिनेशन देखी, करेंसी की डेफिनेशन, उन्होंने देखा कि आरबीआई में आरबीआई एक्ट 1934 है, there is no definition of currency in the RBI Act itself। Let me get it clear. The definition of currency is in the FAMA Act। So they have gone to the FAMA Act. Even they have referred the CGST Act 2017, अपना GST Act also they have referred it, and they have referred the definition of a money into that, for the definition of money as well as the definition of a currency। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने जाके सर मनी की भी डेफिनेशन रेफर करी, करेंसी की भी डेफिनेशन रेफर करी। वहां जाके करेंसी की जो डेफिनेशन आती है कि करेंसी मीन ऑल करेंसी नोट, पोस्टल नोट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे सर अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। सो करेंसी विल इंक्लूड ऑल करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड्स और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स
which may be classified by or designated by RBI to be a currency. So RBI has power to define any instrument in this category as other similar instruments, which we can actually say it is the power of, which we can say is so that RBI can regulate it after classifying it. And Supreme Court has also seen, see what is money? Money is anything which is defined, which actually have these four functions. First, it should be a medium of exchange. It should be a unit of account. It should be a store of value, or it should be of a final discharge or a debt of standard deferred payment. So हम डेब्ट का डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट भी मनी की एक फंक्शन माना गया. सो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे जाके देखा सर बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसीज क्या कर रही है. उन्होंने देखा कि सर न्यूयॉर्क हो या इंडिया हो, ट्रेडिंग इन बिटकॉइंस. आप पिज्जा खरीद रहे हैं, मैं सिंगापुर जा रहा हूं तो बिटकॉइन वर्चुअल वॉलेट से वहां पे एटीएम है और वहां से मैं फिएट करेंसी नॉर्मल सिंगापुर डॉलर निकाल रहा हूं. मैं यहाँ पे खाने के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, ट्रैवल के लिए टू ट्रांसफर माय पेमेंट्स यूजिंग बिटकॉइंस. So all of these, they are actually using all of these cryptocurrencies as a process for money itself. So Supreme Court ने एक जगह concentrate करा कि सर ठीक है गुड्स तो नहीं है, मनी की डेफिनेशन में सबसे ज्यादा आ रहे हैं. एंड आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास पावर बहुत वाइड है, तो आरबीआई को इतना लेक्यूना नहीं होना चाहिए था कि सर एक सर्कुलर इशू कर दिया केवल बैंकिंग सिस्टम के लिए कि सर आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सर्विसेज मत दो. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, दैट शुड आरबीआई शुड हैव, देयर इज नो प्रोविजन, देयर इज नो नथिंग व्हिच इज एक्चुअली फॉरबिडिंग आरबीआई टू क्लासिफाई वीसीज अंडर दिस अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी एंड रेगुलेट इट. सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा सर आप अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में उसको क्लासिफाई करते हो, क्लासिफाई के बाद आपको वीसीज को जो भी रेगुलेट करना, प्रोहिबिट करना है करते हैं, आप वो कर सकते हो. आप अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफाई करके आप कर सकते हो. जो पहला राउंड था पिटिशनर का कि सर वर्चुअल करेंसीज तो गुड्स और कमोडिटी है, तो लीगल टेंडर करेंसी है ही नहीं, आरबीआई के दायरे में नहीं आती, आरबीआई नहीं कर सकता. तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिनाइड इट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर आरबीआई का रोल बहुत बड़ा है और जो अभी करंटली लॉ स्ट्रक्चर है उसमें, क्योंकि आरबीआई का रोल बहुत बड़ा है, उनको फाइनेंशियल सिस्टम के लिए जो भी थ्रेट है उसको रेगुलेट करने का पावर है. सो इसके लिए आरबीआई और आरबीआई उसको रेगुलेट कर सकता था अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में डाल के, और उसको रेगुलेट करके प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दे सकता है. सो the first round of the petitioners was rejected कि सर आरबीआई ये गुड्स कमोडिटी, आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है. क्लियर करा गवर्नमेंट ने गुड्स कमोडिटी नहीं है, इट डू रिसेंबल लाइक ए करेंसी और अ मनी एंड आरबीआई कैन क्लासिफाई इट इन अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट एंड रेगुलेट इट. सेकंड जो ग्राउंड था पिटिशनर का कि सर चलिए, उन्होंने एक ग्राउंड पिटिशन में ये भी डाला था कि सर चलिए मान लेते हैं आरबीआई के पास में, एज्यूम करते हैं कि आरबीआई के पास में जुरिस्डिक्शन है रेगुलेट करने का, फिर भी जो उन्होंने ये सर्कुलर दिया है बैंकों को कि साहब आप क्रिप्टो करेंसीज जो भी ट्रेड डील कर रहा है, एक्सचेंज डील कर रहा है, उसको सर्विस नहीं दोगे, वो आर्टिकल 19(1)(g) का वायलेटिव है. क्यों? क्योंकि सर क्रिप्टो करेंसीज एज ए होल इंडिया में कोई लॉ नहीं है जो इसे बैन करता है या अनलॉफुल. I can hold and do the Bitcoin thing. I can purchase it everywhere. So why RBI has given this instruction to the banks to not to provide the services to exchanges? This is violative of Article 19(1)(g), the right to business. So court ने इस चीज पे डेलिब्रेशन उन्होंने एक्नॉलेज भी करा कि सर मॉडर्न एरा में बैंकिंग सर्विस वर्चुअली बंद हो जाएगा. So banking is a necessity to conduct your business. So आरबीआई के ऊपर ये जो बर्डन है टू दैट आपने क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस की बैंकिंग सिस्टम बंद करी, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करी, दैट इज हेवीली ऑन आरबीआई. सो कोर्ट हैज कंसीडर्ड दैट एंड कोर्ट ने फिर आगे जाके ये भी देखा कि सर आरबीआई का एक्चुअल टारगेट क्या था. आरबीआई का एक्चुअल टारगेट था कि सर वर्चुअल करेंसी की जो ट्रेडिंग हो रही है वो बंद होनी चाहिए. अब सर इस सर्कुलर आने से क्या हुआ, ट्रेडिंग तो बंद नहीं हुई. तरुण मोदी के पास बिटकॉइन थे, अनिल यादव जी के पास में बिटकॉइन थे, तरुण मोदी ने अनिल यादव जी से सीधा खरीद लिया, हम एक्सचेंजेस पे गए नहीं. ये ट्रांजैक्शंस तो तब भी वैलिड है इंडिया में और आज भी वैलिड है. तो सर ट्रेडिंग तो हो ही रही है. अब आपने बैंकिंग चैनल काटा, तो जो एक्सचेंज वाले अपना बिजनेस कर रहे थे इस हिसाब से कि सर हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमारा बिजनेस हिट हुआ. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का पूरा संज्ञान लिया कि सर जो एक्चुअल टारगेट था
दैट इज ट्रेडिंग इन वीसीज, वो इस आरबीआई के सर्कुलर से हिट हुआ ही नहीं, वो अभी तक चले जा रहा है। और जो एक्चुअल हिट हुए वो कौन हिट हुए? एक्सचेंजेस, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए। So people were still buying in a P2P mode। जैसे मैंने कहा, मैं सीधा अनिल जी के पास जाऊंगा, अनिल जी को बोलूंगा सर आप मुझे IMPs कीजिए, अभी बिटकॉइन का क्या वैल्यू है, 7 लाख, आपको एक बिटकॉइन चाहिए, ठीक है, आप सीधा मुझे IMPs कीजिए, RTGS कीजिए, मैं आपको अभी एक बिटकॉइन अभी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर देता हूँ। इट्स लॉफुल थिंग to trade, buy, sell, purchase Bitcoin cryptocurrency is not illegal in India through any law today, so I can do that। तो RBI का सर्कुलर आ भी गया तो भी ट्रेडिंग थोड़ी ना रुक गई। So exchanges just put that thing and this is, सुप्रीम कोर्ट ने इसका पूरा संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा संज्ञान लेके इस चीज को बोला कि सर ये चीज सही है कि अभी भी ट्रेडिंग हो रही है, अगर आपकी ये चीज में है तो आप उसे सही से, जो आपका टारगेट है ट्रेडिंग इन वीसीज, आप उसको रेगुलेट कीजिए। हमने बताया कि कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं, आपके पास में पावर भी है तो आप उसको रेगुलेट कीजिए। दिस इज नॉट द थिंग कि आपने एक सर्कुलर दिया और किसी एक्सचेंजेस को हिट किया। सो ये जो सर्कुलर था वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, इट हैज बीन सेट असाइड। So that is the biggest victory for the cryptocurrency people in India। कि cryptocurrency exchanges को सर आप उनका बिजनेस बंद मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सब जब तक आप कोई लॉ बनाओ नहीं, कोई चीज है नहीं, आप इसको इलीगल नहीं कह सकते, तो आप इसकी बैंकिंग सपोर्ट भी बंद नहीं कर सकते। तो सर आज के दिन में exchanges are working in India, they are accepting the payment in INR, they are also paying in INR, there is no law which is barring them to do so। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा था एक बिल का, बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। सर ये बिल 2019 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले, तो ऑब्वियसली अब ये बिल है, एक्ट तो बना नहीं है, अभी गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, इसमें चेंजेस होना जाहिर बात है। लेकिन अभी जो इस बिल के प्रोविजन है वो क्या है सर? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो पर्सन शैल माइन, जनरेट, होल्ड, सेल, डील, इशू, ट्रांसफर, कुछ नहीं कर सकते सर क्रिप्टो करेंसी से। मना माइनिंग कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, आप टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आप भूल जाइए। सो सेकंड जो बहुत बड़ी चीज है इस एक्ट में, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, दैट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सरकार ने क्या बोला सर हम ब्लॉकचेन तो यूज करेंगे, वो हमको अच्छी लगी, ब्लॉकचेन पूरा यूज करेंगे, क्रिप्टो करेंसी नहीं करेंगे, तो उससे जो भी आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है वो हम नहीं करेंगे। यानी सरकार को गाड़ी चलानी है लेकिन गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं डालना है, तो सर हम भले चलती हुई रोड बना देंगे, गाड़ी आप को अपने आप चल जाएगी, गाड़ी हम यूज करेंगे अच्छी है, बट विल नॉट गिव यू द परमिशन फॉर फ्यूल, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये इस बिल में एक सेकंड बात है। थर्ड बात है कि सरकार ने खुद का रुपी जो अपना इंडियन करेंसी, उसको डिजिटल करेंसी के लिए भी इस बिल के अंदर जगह दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव लाइक योर डिजिटल रुपी टू बी लीगल टेंडर। सो सरकार या आरबीआई कहीं ना कहीं, आप सर जब ये पूरी डिसीजंस देखेंगे, जो इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसके मिनट्स और दूसरी चीजें, जिस हिसाब से डिस्कशंस आगे बढ़ा इन सब चीजों में, आप पाएंगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई आर वेरी मच इन फॉर digital, for the blockchain and for their own digital currency, but they do not want the people to deal in cryptocurrencies. So whoever holds it will be punishable or imprisoned 5 for 1 year, 1 साल से 10 साल तक की सजा है। और जब भी ये बिल एक्ट बन जाएगा अगर इसी फॉर्म में, तो जिसके पास, आपके पास, मेरे पास, किसी के पास जो भी क्रिप्टो करेंसीज है, उनको 90 डे का विंडो दिया जाएगा कि उस विंडो के अंदर सर आप जो भी करेंसीज है उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, एंड करेंसीज आर नॉट अलाउड इन। This is the legality, sir. ना गुड ना कमोडिटी, अभी सारे एक्सचेंजेस आफ्टर दिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वापस आरबीआई और गवर्नमेंट के पास गए कि सर अब तो बता दीजिए कि ये है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप रेगुलेट कर सकते हो, तो रेगुलेट करके गिव अस द क्लैरिटी, तो हम वो क्लैरिटी के साथ बिजनेस कर सके, डर के साथ नहीं कि कल को कुछ बंद हो जाए। तो इंडिया के अंदर सर अभी तक वो जो लीगैलिटी है दैट इज स्टिल नॉट क्लियर। आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड एवरीबडी वी आर वेटिंग कि सर कुछ क्लैरिटी आए कि इसको क्या मानेगी सरकार। So we'll wait for that whenever it is come, maybe we'll update in a larger public। आज अपन ये देख लेते हैं सर कि पूरी दुनिया में इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यूएसए, सर यूएसए के अंदर जैसे अपनी सीबीडीटी है, वहां आईआरएस है, सो दे ट्रीट इट एज अ प्रॉपर्टी। सर देखिए अभी आपको मैं बोलूँगा सिचुएशन क्लियर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इफ यू डील इट इन द इनकम टैक्स गाइज एंड द जीएसटी गाइज विल नॉट सेंड यू नोटिस, वो नोटिस सेंड करेंगे अपने हिसाब से, कुछ भी मान के सेंड करेंगे। और जो लीगैलिटीज मैंने आपको बताई है,
आपको अपने केसेस उसके हिसाब से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि सर अगर मेरे क्लाइंट्स इन चीज में डील कर रहे हैं तो what should I provide a consultancy to them that you should treat it as a goods, commodity, money, currency. जो मैंने आपको points दिए, you can refer to them according to your case. So in USA, IRS treat it as a property. Security and Exchange Commission like SEBI, they treat it as a security अपने फायदे के लिए. And there is another like यहाँ पे तो इंडिया में security और commodity दोनों SEBI handle करते हैं. So there is one more thing, CFTC, Commodity Trading Corporation, Commodity Financial Trading Corporation, जो वो उसे commodity treat करता है. उन्होंने कहा कि सर commodity आप तो commodity के हिसाब से इसकी transactions कर लो, trading कर लो. So US is a confused states. Different departments treat it separately. कनाडा में सर प्रोविंशियल लेवल और फेडरल लेवल पे अलग अलग थोड़े लॉज है. प्रोविंशियल लेवल पे थोड़े अलग अलग चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ सिक्योरिटी, बट फेडरल लेवल पे कैनेडियन गवर्नमेंट इज क्लियर, दे ट्रीट इट इज लाइक ए सिक्योरिटीज. यूके के अंदर उन्होंने एक यूनिक टर्म दिया इनको, दे हैव नेम्ड एज ए यूनिक आइडेंटिटी, और उनको कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स करते हैं कि सर ये यूनिक आइडेंटिटी के एसेट्स हैं और हम इनको कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल करेंगे. स्विट्जरलैंड में इनको लीगल प्रारूप दिया गया है, इनको असेट्स माना गया है, एंड दे आर लाइबल टू वेल्थ टैक्स आल्सो एज पर स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट. सर माल्टा छोटी सी कंट्री है, दे आर वेरी मच, बहुत अग्रणी है क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेशंस में. उन्होंने अपने वहां पे एक एक्ट भी बनाया, वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट्स एक्ट, जहां पे वर्चुअल एसेट्स को उन्होंने तवज्जो दी, उनको लीगैलिटी दी है, कहा है कि इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू. So Malta has proper regulations for these cryptocurrencies. China cryptocurrencies is illegal, sir. Holding, trading, exchange, everything, it is illegal. But mining is still legal. So you, if you are having a very good, serious computational power sitting in China, you can mine Bitcoin. You can mine Bitcoin, but you cannot trade, you cannot do anything. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया इज देयर. सिंगापुर एक इंपॉर्टेंट है. सिंगापुर में वहां पे गुड्स माना गया है, तो गुड्स जैसे ही मान लिया, अगेन जीएसटी अप्लाई हो गया. तो इंडिया में भी सर ये चीज है, इफ आई से यू इट इज अ गुड्स, तो मान लीजिए आपने 10 बिटकॉइन खरीदे, 10 बजे जीएसटी डिपार्टमेंट विल कम हो रही है, सर ये 10 बिटकॉइन आपने खरीदे, 7 लाख का एक, 70 लाख के 10, 70 लाख के हिसाब से गिव जीएसटी. गुड्स का कोई बिटकॉइन स्पीसीज का कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन जीएसटी में नहीं है, तो वो लोग देंगे ठीक है सर ये रेसिडुअल में ले जाएंगे, एंड रेसिडुअल हैज 18% रेट. So expect GST department may send some notices if they find the thing that you are trading it in, you are classifying it in a residual category and charging an 18% GST which you have not paid it. तो सर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए सरकार के साथ में हम ये बोल रहे हैं कि सर प्लीज गिव आउट द रेगुलेशंस, अदरवाइज अननेसेसरी हैरेसिंग एसएससी की होनी लेजिटिमेट होना तय है, और वो होगी भी सर. जी सर, हाउ इट अफेक्ट्स आवर प्रोफेशन, लेट मी टेक इट. And Naveen ji, we'll wrap up in like 5 minutes, and after that we may have some questions if there are. Yes sir, you can continue sir, please. ठीक है सर. So अब ब्लॉकचेन हमने समझा सर, अब हमें क्यों डरने की जरूरत है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? व्हाट द ब्लॉकचेन इज डू सर, इट इज अ टेक्नोलॉजी, इट इज अफेक्टिंग आवर प्रोफेशन सीरियसली. हमें उस चीज के बारे में देखने की बहुत जरूरत है. बड़ी चीज अकाउंटिंग सर, आज अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है अपने प्रोफेशन का भी. So consider a thing, a blockchain, everything happens on a blockchain, different branches do it on blockchain, verifications happen directly. Where a profession is required in between? Where is it required? Your role will change. Your role will change to not of an accounting rather than defining the process of accounting. So there will be serious change in your role. Mind that. Similarly, जैसे हमने कहा ब्लॉकचेन क्या है सर, ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का एक सॉल्यूशन है. ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी एक सॉल्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं. हम किसी और की बुक्स ऑडिट करके ट्रस्टिफाई करते हैं सर दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ट्रू एंड फेयर. सो इफ blockchain is there, everybody can go and verify, then what is a role of an auditor to come and check? नहीं सर, 10,000 BTC तरुण जी के पास में है, ये ऑडिटर को सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आके देख सकता है कि है. सो द रोल ऑफ ए ऑडिटर विल रियली मॉडिफाइड. ये मॉडिफाइड होगा rather than auditing the transactions, you need to audit the process. A significant change can happen in the role of audit. In certifications, see trust certification, we certify things. If it is available on blockchain, there is no need of certifications.
Similarly, project finance and management on a blockchain, projects are managed very well. So where is your need to do that? So sir, हमें ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, डरने की बजाय we actually need to take it as an opportunity. बैंक्स के अंदर आप सबको पता होगा, जब बैंक्स के अंदर कंप्यूटर आया था तो सब में डरता रहे सर जॉब्स चली जाएगी, बैंक को इतने सारे लोग हैं, कंप्यूटर से आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंकों में जॉब चली जाएगी. लेकिन आज सच्चाई क्या है सर? कंप्यूटर हैज क्रिएटेड मोर जॉब्स इन बैंक्स और एनीवेयर एल्स रेदर देन इट एट. जब कंप्यूटर आया था सबसे बड़ा डर था सर जॉब चली जाएगी, लोग खा जाएगा, मशीन कर लेगी. लेकिन आज कंप्यूटर का नॉलेज है तो यू कैन हैव मोर जॉब्स. तो सर हमें किसी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज से डरना नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट and we need to adopt it in our working if we want to live in this area. Sir, change जो बोलते हैं सर change शाश्वत सत्य है, वो होके रहेगा. So we need to adapt with it. That is what. So our functions are affected and we need to get adapted on that. बस अगर आपको लग रहा है ब्लॉकचेन में कुछ नहीं हो रहा दुनिया में, तो लेट मी गिव यू वर्ड. सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु गवर्नमेंट पूरा एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही, they have started the work to do it on blockchain. स्टेट का चाहे पीडीएस सिस्टम हो, कोई भी हो, पीडब्ल्यूडी हो, व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी ड्रिवन बाय ब्लॉकचेन. they have started working on that. तेलंगाना ने एक अलग से ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना दी है हैदराबाद के अंदर, where they are like pushing the startups to work on the blockchain. तेलंगाना is doing such thing. आंध्र गवर्नमेंट ने सारे लैंड रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन में डाल दिए कि सर आप जाओ, आप वेरीफाई कर लो, टाइटल्स के इशू ही खत्म हो जाएंगे. सो ब्लॉकचेन को बहुत सी गवर्नमेंट्स आर यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट. ये सारी ब्लॉकचेन सर सेमी प्राइवेट ब्लॉकचेन है गवर्नमेंट के लेवल पे, बट दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन. तो सर आप ये चीज समझिए, आगे ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करेंगी वेदर और विदाउट क्रिप्टो, बट ऑर्गेनाइजेशंस विल आल्सो यूज. सो blockchain will come into your life and you need to live with it. You need to know what it is and you need to know how it works, like hashing system, how the trust is built up, and you need to provide your services accordingly. So glossary है ये. आप कभी भी देख सकते हैं कि जो छोटे मोटे वर्ड्स होते हैं अलग, उनका ब्लॉकचेन की दुनिया में क्या मतलब होता है. ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन के अलावा जो भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी है उनको ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, फोमो, होल्ड, ICO. So there are many things. These are the exchanges which is available, sir. Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin. These are Indian exchanges, WazirX, ZapPay, where you can go and trade it. This is what the thing, sir. ICI has अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है श्री अतुल कुमार गुप्ता सर, डिजिटल एश्योरेंस एंड अकाउंटिंग बोर्ड ने ब्लॉकचेन के ऊपर एक पेपर प्रस्तुत किया था 2018 में. एट दैट टाइम अतुल गुप्ता सर वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी. And they have produced a fantastic paper on the concept paper of the blockchain. आप डिजिटल लर्निंग हब पे भी जाइए, कोर्स है ब्लॉकचेन और अकाउंटिंग के ऊपर, that is available for free to all. So you can go and have that course also of the blockchain in ICI Digital Learning Hub. नीति आयोग सर बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहा है ब्लॉकचेन इन वेरियस फील्ड्स, ऐसे गवर्नमेंट फील्ड्स जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, वर्क ऑन ब्लॉकचेन. फिक्की की रिपोर्ट से सर स्टेटस चेक आप कर सकते हैं जाके कि आज ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेशंस क्या क्या. सो दीज आर वेरियस रेफरेंसेस. एवरी इंडस्ट्री इज डूइंग सो मेनी थिंग्स. लेट मी टेल यू ऑन टू दिस. सो विद दिस आई जस्ट वांट टू पुट अ ब्रेक टू माय टुडेज डेलिब्रेशन. I hope you actually got some idea of what the blockchain is, how it is different from the cryptocurrency, and how blockchain can be used without even a cryptocurrency. So technical नहीं जाके सर, try to keep it functional. तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, but have, as I always say, conceptualizes. आप conceptualize करेंगे अपने मन में, it will be very easy to you to understand. With this, thank you so much, sir, Jaipur branch, also to give me this opportunity. Over to you, Naveen sir. Take it forward. Any questions and all. Thank you very much, Tarun Modi ji, for the wonderful speech and nice deliberation. Thank you so much, Naveen sir. In the today's session, we have learned a lot of things. How the blockchain works, importance of the hash function, data security, the blockchain technology, distributed ledger, type of the blockchain, private blockchain and public blockchain, permission of the blockchain technology, what is the crypto assets, transparency in the crypto asset transition, Bitcoin mining, proof of work, proof of state. Learn about the Bitcoin, first crypto assets, reward concept, wallet in Bitcoin, private key,
legality in India, history of Bitcoin, banning of the crypto assets in India, regulatory across the globe. Thanks, Arun ji. Now all the confusion related topic are resolved. फिर भी कुछ queries है मेरे पास, कुछ तो cover हो चुकी है तरुण जी, पर कुछ मैंने assess किए जो हो नहीं पाई है, तो मैं आपको एक सीरियली लेता हूँ. सीए नेहा अरोड़ा जी की है, बेस्ट कोर्स ऑनलाइन टू लर्न ब्लॉकचेन. सर मैंने जैसे बताया, यू कैन गो एट द आईसीआई डिजिटल लर्निंग हब, वहाँ पे ब्लॉकचेन और अकाउंटिंग के लिए कोर्स अवेलेबल है. दैट इज अ फैंटास्टिक कोर्स, दे कैन गो फॉर दैट. मेरी प्रेजेंटेशन में सर लिंक भी है, सो दे कैन गो एंड हैव दैट. ओके सर. सीए मुकेश सोनी जी का क्वेश्चन है, हाउ ब्लॉकचेन कोर्स टू बी यूज्ड इन द ई असेसमेंट अंडर IT Act. So e-assessment again, sir, it's a within organization thing, government. So government can use it, and it will be always a private blockchain, not be a public blockchain. I cannot see that Naveen Sharma ji ka ITR kitne ka assessment kya ho raha hai, is section mein ho raha hai. So obviously government will not make it a public. Government can use it. It is a private blockchain, not for much use for us. Next query है देवेश गुप्ता जी. In blockchain, lot of computational power is required for mining of proof of work. This is the fine in the case of the cryptocurrency. But how this managed in case blockchain is implemented in the company to record financial transaction? Will this increase processing time of transaction considerably? नहीं सर, that's amazing question. That's a nice question. जो हमने देखा प्रूफ ऑफ वर्क के लिए कितना कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड है, तो ये क्वेश्चन देवेश गुप्ता नाम बताया ना, देवेश जी ने क्वेश्चन पूछा था. तो उनका सर थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है, जो सोच है वो सही है कि सर अगर इतनी कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर है तो मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों लूँ, इतना कॉस्ट मुझे बेयर करना पड़ेगा. सर देखिए, जब आप एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट प्राइवेट ब्लॉकचेन, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट ब्लॉकचेन, there will be either permission or permissionless. If it is a permissionless also, it will be like within your entity. जैसे ICICI बैंक ने अपने ब्रांचेस के लिए करा है, तो सर वहां पे जो डिफिकल्टी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी पब्लिक में. मान लीजिए 10 लाख लोग एक्सेस कर रहे हैं एक डेटा को, उस डेटा के लिए क्या डिफिकल्टी होगी. कंसिडर दिस कि एक आपका इंटरनेट है, मैं flipkart.com 10 लाख लोग एक साथ खुलते तो उनको कितना पावर चाहिए, और एक आईसीआईसीआई बैंक में फिनेकल है जो इंट्रानेट पे है जिसमें 10,000 लोग खुल रहे हैं. तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में सर इतना कंप्यूटेशनल पावर का रिक्वायर्ड नहीं होगा, सो दैट विल नॉट बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. वेरी ट्रू सर. नेक्स्ट क्वेरी है सीए मीनल अग्रवाल जी की. इज इट नॉन अनएथिकल टू लीगलाइज ए अनरेगुलेटेड करेंसी एंड चार्ज टैक्स? सर दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. इनफैक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि ये एक डिलेमा है हमारे लिए भी कि बिटकॉइन जिस चीज के लिए बना कि सर हम सेंट्रल बैंक से मुक्त होना चाहते हैं, आज सेंट्रल बैंक की सर्विसेज लेनी पड़ रही है बिटकॉइन खरीदने के लिए. समझा? तो yes, ये एक डिलेमा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है. अब ये है कि सर अनरेगुलेटेड थिंग है तो सरकार को पावर नहीं होना चाहिए, they should not regulate it, but at the same time they will not allow us to trade it free because financial system is under threat. और सर ये टेक्नोलॉजी नई है, emerging है, so let's have a regulation, let's make this technology more mature. Once it become more mature, then we may discuss on this whether the government should have regulate it or not. सर नेक्स्ट क्वेरी है आदित्य माहेश्वरी जी की. व्हाट इज द आउटलुक on Bitcoin when several other cryptocurrency have been coming to the market? Will the so-called scarcity and concept of the currency mining still give value to these currency? सर देखिए, दो पार्ट में ये क्वेश्चन आपका डिवाइडेड है. जो पहली चीज ये थी कि सर बिटकॉइन है तो बाकी क्रिप्टो करेंसी, सर हर क्रिप्टो करेंसी एक अपना नया प्रोजेक्ट लेके आई है. हमने हमारी प्रेजेंटेशन में आज देखा बिटकॉइन डोमिनेंस. सो बिटकॉइन है 65% ऑफ डोमिनेंस विद इट, राइट? सो बिटकॉइन का एक अपना डोमिनेंस है, हर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना प्रोजेक्ट है. सर वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे. तो किसी भी करेंसी को अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता होगा, मोर पीपल विल कम टू इट, एंड देन the value of that cryptocurrency will automatically increase.
सो बिटकॉइन अपनी जगह सर, दूसरी करेंसी सिस्टम्स अपनी जगह, इथीरियम, रिपल मैंने आपको बताया उनकी भी अच्छी वैल्यू है, दे आर ऑन टू डिफरेंट इंडस्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग देम, तो वो एक अलग चीज है। और दूसरा स्कैरसिटी सर, बिटकॉइन इन्फ्लेशन आज आप देखेंगे तो वो यूएसडी और आईएनआर के इन्फ्लेशन से भी कम है। बिटकॉइन इन्फ्लेशन इज जस्ट एट 1.8%, यूएसडी इन्फ्लेशन इज 3.8%। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है सर। यू नो कि आज 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है, एक ब्लॉक में 6.25 बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं। अगर आप पूरे दिन का कैलकुलेशन लगाएंगे तो आपको पता है सर आज 900 बिटकॉइन ही जनरेट हो सकते हैं नए। तो यू नो कि आज के दिन में कितना नया रुपया छप सकता है, बट आरबीआई ऑब्वियसली डायरेक्टली कनेक्टेड विद इट। सो बिटकॉइन के केस में वो चीज लिमिटेड है बिकॉज द सप्लाई इज लिमिटेड। सर नेक्स्ट क्वेरी है, लास्ट क्वेरी है अखिल पचौरी जी की, वेयर टू अप्लाई बिटकॉइन इन द रियल लाइफ सिनेरियो। सर हमने बहुत से एग्जांपल्स डिस्कस करे इन चीज में। जो सबसे बेहतर एग्जांपल मेरे को लगता है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली ब्रांच को कुछ भी पैसा भेजना है न्यूयॉर्क में, वो स्विफ्ट के थ्रू भेजते हैं। यहाँ पे सिटी बैंक इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे बोफा बैंक ऑफ अमेरिका इन्वॉल्व होगा, फिर न्यूयॉर्क के ब्रांच को जाके वो चीज मिलेगी, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा। और अगर मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे मैं सीधा ट्रांसफर कर सकूँ कि सर ये अकाउंट है, न्यूयॉर्क का ये ब्रांच है, वो भी उस नेटवर्क पे है, मैं भी इस नेटवर्क पे हूँ, मैं यहाँ से एक माध्यम से उनको पैसे भेजूं, वो वहां पे रिसीव कर ले हाथों हाथ। सर जैसे बिटकॉइन अपन भेज रहे हैं 10 मिनट, जो रिपल का है इंटर बैंक सिस्टम, इट विल टेक ओनली 4 to 5 seconds टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन। कॉस्ट सर, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में चीज क्या, कॉस्ट आपकी भेजने की सेम है। जो अपने ट्रांजैक्शन फीस की बात करें सर, आप 1 बिटकॉइन भेजिए या 10 बिटकॉइन भेजिए, फॉर से फीस इज 0.01 बिटकॉइन, तो आप कितने भी बिटकॉइन भेजिए फीस विल बी 0.01 ओनली। कोई परसेंटेज के हिसाब से फीस नहीं लगेगी सर। आप 10 रुपए भेजिए, 10,000 करोड़ भेजिए, तो सिर्फ 5 रुपए में जाएंगे। तो आप ये चीज समझिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली सेंडिंग न्यूयॉर्क ब्रांच, सर आज के कन्वर्जन के हिसाब से 50,000 रिपल आपको भेज रहा हूँ, और 1 रिपल ही ट्रांजैक्शन फीस और 1 रिपल की वैल्यू है 15 रुपए। तो 15 रुपए में न्यू दिल्ली ब्रांच जितना भी चाहे पैसा सीधा न्यूयॉर्क ब्रांच को, द कॉस्ट विल बी 15 रुपीज। अब आप स्विफ्ट से कंपेयर कर लीजिए टाइम कितना लगता है और कॉस्ट कितनी लगता है। सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल इन ब्लॉकचेन, हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, योर बैंकिंग एक्सपीरियंस। Thank you, Tarunji. We have taken all the related query here. No query is pending right now. Now I would like to invite young and energetic Sri Kuldeep Gupta ji, Secretary Jaipur Branch, for the vote of thanks. Thank you so much, Naveen bhaiya. I think probably it was the first webinar or any CP program जो पूरा इतने इंटरेस्टिंगली एक नए कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इनकम टैक्स जीएसटी हम सभी ने देखा है, पढ़ा है, सब चीजें हैं, हर चीज रिवीजन के तौर पे होती है, बट शायद बिटकॉइन पे और जो क्रिप्टो करेंसी पे जो आपका सेशन था, और ये इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि हर चीज हमें वो चीज नहीं देखने को मिली। तो हो सकता था कि शायद गूगल को जो सब चीज पता है, शायद वो भी हमें इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमें प्रेजेंट नहीं कर पाते कि 2 घंटे में आपने हमें इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपने हमें इस चीज के बारे में बताया, और रियल लाइफ में ये इसका कैसा यूज कर सकते हैं, क्या यूज है, क्या कॉस्ट आ सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, लीगलिटी है या नहीं है, इंडिया में इसका स्टेटस क्या है, इन सब जो टॉपिक्स पे जो आपने कवर किया, रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर for accepting our request for the, and thank you all the viewers for the attending this webinar. I think all the members have mentioned their membership number and name in the ICICI Jaipur host chat box. Until unless you could not paste your details, attendance will not be updated in the CP records. So it is requested to all the members, please mention your details in the ICICI Jaipur host chat box only. And thank you so much. Thank you so much, Naveen Sharma sir, for giving time to the ICICI Jaipur branch. Thank you so much all the viewers. Last but not lastly, मैं एक छोटा सा चीज और, क्योंकि कुछ मेंबर्स का मेरे पास मैसेज भी आया था, किसी भी मेंबर की अगर अभी कोई क्वेरी हो जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज हो सकता था उस वक्त मेरे पास कई मेंबर्स थे जिनके हैंड रेज हुए थे, लेकिन अभी शायद अभी नहीं है।
अगर किसी को क्वेरी हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं. Maybe Kuldeep, you can share the email also if they have that, they can email me and I'll reply back. They can call me also. But that will be one to one. हाँ नहीं, अगर अभी नहीं है तो, अगर अभी नहीं है yes, there are two queries. One from C. Ratan Goel ji. Yes sir. I am unmuting him. Sure. Yes sir, Ratan Goel sir. I think he is not there. Next one, Akhil Pachori ji. I think we have taken the. Good evening, sir. Good evening. Yes, Akhil. Good Sir, evening. am I audible? Yes. Yes सर सर मेरे को एक चीज पूछनी थी. जैसे you said there are only 21 million bitcoins that can be mined. Sir, what after if 21 million bitcoins are mined, and then who will be participating in DLT by participating in verification part if there are no rewards in मैं समझ गया अखिल जी आपकी बात कि एक जब रिवॉर्ड है ब्लॉक रिवॉर्ड, आज मुझे एक ब्लॉक बनाने के 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं, फिर जब खत्म हो जाएगा तो कौन देगा सर? तब सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस पे काम होगा. आप ये समझिए जो ट्रांजैक्शन फीस आज कम है वो शायद थोड़ी सी बढ़ जाएगी. तो हर ब्लॉक में जो भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेंगे वो ट्रांजैक्शन फीस के बाद में वो ट्रांजैक्शन फीस डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो लेकिन वो सब चीजें देखने के लिए ना आप होंगे ना हम. इट विल कम आफ्टर 2140. तो आज आप माइनिंग कर सकते हैं सर. You'll get rewards. Okay, thank you sir. Okay, thanks to all of you. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. हेलो 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 कुलदीप जी, ये सीपी आवर्स के लिए क्या करने के लिए कहा है आपने? सर सीपी आवर्स के लिए आपको सिंपली जो आईसीआई बॉट्स आपको दिख रहे होंगे साइड के अंदर पार्टिसिपेंट में, वहां जाके चैट ऑप्शन आएगा. तो चैट ऑप्शन में आपका नाम और मेंबरशिप नंबर आपको ऊपर डाल देना है. और वैसे हम लोग यहाँ की रिपोर्ट भी जनरेट कर लेंगे सॉफ्टवेयर की कि लोग 1 घंटे 45 मिनट से ज्यादा जिन्होंने लॉग इन किया है उनकी भी हम लोग अपडेट करेंगे. ठीक है ना सर. और वैसे मीनवाइल आपके जो नाम और मेंबरशिप नंबर है वो चैट के अंदर आ सकते हैं. तो नाम और मेंबरशिप नंबर अपन ने रजिस्ट्रेशन में डाला है, वो सफिशिएंट नहीं है? वो भी यहाँ पे आए नहीं है, ज्वाइन किया नहीं किया, तो वो थोड़ा सा नहीं, उसी से अभी लिंक आया है और उसी से हम लोगों ने जूम पे लॉगिन किया है. वो क्या है, वो लिंक नहीं हो पा रहा हमसे गेम के ऊपर ना. वो कोई आइडिया नहीं हो पा रहा. सब वो एक नॉर्मल लिंक है, वो मतलब सबके लिए ही है वो. ओके मतलब नहीं है, वो नॉर्मल लिंक है, सभी के लिए कॉमन है. कॉमन है. ओके ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू.